A very good evening, guys. This is Yogen from Fosk. I hope everyone can hear me. Is the voice clear to you guys? Please confirm if you can hear me. A lot of people raising hands and responding back in the chat window. Thank you, guys. Hardik, Valand, Ritu Agarwal, a lot of people. Okay. Sunita, Ashrita. Okay. So, uh, guys, before we start for today, right? Uh, let me, come to this screen. So, is the screen visible to you guys? Is the screen visible to everyone? Okay, Shriyan saying yes. Ishita saying yes. Okay. Hmm, hmm, fine. So, guys, if we talk about what we did yesterday, right? We can see that what is written on the screen right now, we covered a couple of topics from that list, right? So we discussed about data types, right? And I told you a couple of data types are available in Python. Int was there, float was there, bool was there. What else was there? str was there, and none type was also there, right? These were couple of data types we discussed yesterday. And then how to take input from the user. For that purpose, we called an input method, if you can see, right? So we called the input method. And there was one concern regarding using input method, that it always reads the data in str format only, right? And then a print we are using, right? Couple of times we have used print, so nothing, much into that part. I also discuss how you can import a library, right, in Python. And for that purpose, I used math library. And how was the statement? The statement was something like that: import math. And along with importing math library, मैंने आपको दो functions के बारे में और बताया था. So whenever you import a library, if you want to list down all the methods available in the given library, you can use the dir method. And to know the specific function कि वो क्या कर रहा है, right? वो specific function की क्या details हैं, वो specific function क्या input में लेगा, क्या return करेगा, what are the other specifying the index 0. So I get the capital F that you can see in the console window, right? Now I want to change it. I want to change it to some other, letter. So let's say I want to replace it with, lower f, right? So already it is upper. तो पहले से कैपिटल है, बट नाउ मैं स्मॉल लेटर से इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ. क्या ये पॉसिबल है? हम इसके बारे में कल चर्चा कर रहे थे. दैट वाज अवर लास्ट डिस्कशन, एंड देन जब मैंने इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट एंटर दबाया टू रन इट, so now it is saying str object does not support item assignment. That means there is an error. When I execute this line, there is a error. What is the meaning of this error? Is saying that strings are read-only in Python. You cannot change them once initialized, right? Having said that you cannot change strings are read-only, in Python we called read-only stuff as immutable. So what we call it as immutable, right? So strings are immutable, basically read-only, so they are the read-only. Is that clear to everyone, guys? Yesterday we had a discussion around that. कल ही हमने इसके बारे में बात की थी और आप लोगों ने इसको देखा था. Before I went for a break, उससे पहले मैं यहाँ तक आपके पास डिस्कशन में था. Now, अब हम कुछ और चीजों को थोड़ा सा देखेंगे. अब आप देखिए यहाँ पे मेरे पास str1 में Fosk जयपुर लिखा हुआ है, right? And now I called a method on my string str1 dot, और मैं यहां पर एक मेथड कॉल कर रहा हूं. तो डॉट लगा के मेथड. आप बोले यार ये मेथड कहां से आया, हमें तो पता ही नहीं है.
कोई बात नहीं, अब हमारे पास तरीके हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन कौन से मेथड्स को हम स्ट्रिंग पर अप्लाई कर सकते हैं। कल आपको मैंने इंपोर्ट मैथ के बारे में बताया था, dir मेथड की चर्चा की थी। तो dir में इस बार हम क्या पास करेंगे, str, राइट। str क्या है, एक क्लास है पाइथन में जो रिप्रेजेंट करती है str डेटा टाइप को, स्ट्रिंग डेटा टाइप को। सो आई हैव टू से dir and the name of my class str, and now correspondingly I get to know so many methods available which I can use to process the strings, right? Now you can see a lot of methods are available. I'm not going to take everyone, just 3 or 4 methods I will take, and for rest of the things you can look into at your end. Now guys, मैं यहाँ पर इस मेथड की बात कर रहा हूँ, देखेंगे यहाँ पे, डू यू फाइंड अपर मेथड एनीवेयर? सो लेट मी चेक, वेयर इज इट? Okay, there is it, it's upper method, right? And if you want to know what exactly upper method is doing, so how can I identify that? Help is there, right? And then how I have to do str dot upper, I think it should work, right? And now, right now you can see what it does. It returns a copy of the string. Guys, this is important to read. It says it returns a copy of the string converted to uppercase. What is the meaning? Why it is specifying it returns the copy? Why it is saying it returns the copy? Why it doesn't say the string directly, right? Let me explain to you. Now guys, if you see, I call this method str1.upper. Upper के बाद मैंने parenthesis को close कर दिया because it's a function. And now see the output. If you see the output on the console, मेरी str1 स्ट्रिंग के हर लेटर को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया है। किस मेथड ने? अपर ने। लेकिन ध्यान रखने की चीज ये है, अपर मेथड ने स्पेसिफाई किया है कि रिटर्न्स अ कॉपी ओनली। दैट मीन्स माय ओरिजिनल स्ट्रिंग इज एज इट इज, देयर इज नो चेंज, राइट? जब मैंने इस मेथड को कॉल किया तो सिर्फ मुझे एक कॉपी मिली है, राइट? str1 ओरिजिनली अभी भी वैसा का वैसा ही है जैसा मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था एट लाइन नंबर 2। ऑब्वियसली सही होना भी चाहिए, बिकॉज इससे पहले हम बिल्कुल जान चुके हैं कि स्ट्रिंग्स आर रीड ओनली, और अगर स्ट्रिंग्स रीड ओनली हैं तो ना तो कोई अपर मेथड ना कोई दूसरा मेथड str1 को ओरिजिनली चेंज नहीं करना चाहिए। और वही यहाँ पे हुआ है, str1.upper कॉल करने से सिर्फ हमें आउटपुट पर, डिस्प्ले पर चेंज मिला है, ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारी अभी भी ऐसी की ऐसी ही है। आप चाहो तो इसके आउटपुट को किसी दूसरी स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हो, तो मे बी यू कैन राइट समथिंग लाइक दैट, str1.upper, and this way, this time your result comes out in a str2, and there you can print it str2, right? So this is the way, right? This is the way that whatever the functions we apply on the strings, they will only change the string on the display, right? Original string remains as it is because the strings are read only. Guys, is this concept clear to you? कि कोई भी मेथड कॉल करेंगे तो सिर्फ आउटपुट पर, डिस्प्ले पर चेंज होगा, ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं होने वाला है, राइट? ओके, लेट मी कॉल वन मोर मेथड। नाउ दिस टाइम आई कॉल्ड str1.lower। नाउ अब तो पता चल ही गया होगा कि ये क्या करेगा। सी में भी हमने ये खेल बहुत किया है फर्स्ट ईयर में कि लोअर केस में कन्वर्ट करो, अपर केस में कन्वर्ट करो। दिस फंक्शन बेसिकली कन्वर्ट्स योर स्ट्रिंग इनटू अ लोअर केस, राइट? So this is how you can call in any function, and to get the list of functions which are supported by string methods और strings, तो वो आपके लिए यहाँ पे मेथड हमारे पास dir मेथड ही था। ये इसी से हमारा काम चल जाएगा कि using dir method we can identify the list of methods available with the string class. Now कुछ और चीजों को भी देख लेते हैं, right? Let's say मेरे पास एक str1 है जिसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है a b b फिर से a, no, this is the str1, right? Now यहां पर अब आप देखोगे, राइट, यहां पे आप देखोगे कि a कई बार आया हुआ है,
इफेक्टिवली अगर आप देखो तो पता चल रहा है कि ए 4 बार आ रहा है। क्या किसी मेथड से मैं ये पता कर सकता हूँ कि कोई पर्टिकुलर लेटर कितनी बार रिपीट हुआ है? यस, आई कैन डू दैट। आई कैन कॉल अ मेथड कॉल्ड काउंट, राइट? str1 डॉट काउंट। काउंट किसका? बोले यार बता दे ए कितनी बार आया है। सो नाउ आई हैव अ मेथड, नाउ इट टेल्स यू 4, राइट? कैन आई also find out कि let's say letter B for Bombay, ये किस इंडेक्स पे है? तो आई कैन गो फॉर अ मेथड कॉल्ड इंडेक्स, राइट? और इंडेक्स को क्या दूंगा कि बता भैया लेटर बी किस इंडेक्स पे है। अब बी तो दो जगह है, इसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा? बी तो दो जगह आया हुआ है, राइट? यहाँ पे भी है और उसके जस्ट इमीडिएटली बाद भी है, राइट? बैक टू बैक दो भी हैं। It will give the first occurrence, it will give the index of first occurrence, right? That means ये तो इंडेक्स हो गया 0, ये इंडेक्स हो गया 1 और ये इंडेक्स हो गया 2. So now we should get a result, index 2, right? Let's say I want to call this function again and this time I say, मैं उसको बोलता हूँ कि यार बता भाई k का क्या इंडेक्स है, जबकि अब str1 में k तो कहीं है ही नहीं, right? So let's see what is the response in this case. In this case, we get error, value error, and it says substring not found, right? एक तो ये चीज होगी कि इसका मतलब जो लेटर नहीं मिला है उसके लिए एरर मिल रहा है, राइट? अगर हम ये जानना चाहते हैं कि सिंगल लेटर के लिए क्या इंडेक्स है, हम चाहें तो ये काम एक सब स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हमेशा सिंगल लेटर का इंडेक्स ही आइडेंटिफाई करो, आप चाहो तो यू कैन स्पेसिफाई अ सब स्ट्रिंग एज वेल। सो लेट्स से मैं इसको बोलता हूँ कि यार बता बी ए, राइट? बी ए का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस सब स्ट्रिंग का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो नाउ यू विल सी इसने क्या दिया है 3, वाई 3 दिया है इसने, देखोगे यहाँ पे एग्जैक्टली बी ए हमारी यहाँ पे है। हमारा इंडेक्स जो रिजल्ट में आया है वो स्टार्टिंग इंडेक्स को बता रहा है कि एग्जैक्टली ये सब स्ट्रिंग किस इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो इसका इंडेक्स क्या बनेगा? ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, राइट? एंड देन ये 3, राइट? तो इस तरीके से हम इंडेक्स को, काउंट को, लोअर को, अपर को एंड अदर मेथड्स कैन बी यूज्ड टू डील विद स्ट्रिंग्स एज पर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जैसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहेगा उसके हिसाब से ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। अब मैं दो स्पेसिफिक मेथड्स को बहुत अच्छे से आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है, हमारे असाइनमेंट से रिलेटेड भी हैं। जो असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे उसमें वो काम आएंगे, राइट? बट उससे पहले एक और मेथड मैं आपको बता देता हूँ, str1, राइट? str1 डॉट, राइट? ओके, सो गाइज एक करेक्शन मैं करना चाहता हूँ। यहाँ पे किसी ने सवाल पूछा है तो जो डाउट आ रहा है उसकी वजह से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इस मेथड में बी ए का इंडेक्स पूछा गया है कि बी ए नाम की स्ट्रिंग किस इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है और आंसर 3 आया है। इस 3 को मतलब ये ना समझें कि बी ए 3 बार आ रहा है, राइट? इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कंप्लीट स्ट्रिंग str1 में बी ए 3 बार रिपीट हुआ है, नहीं। इंडेक्स का मतलब तो क्या होता है कि ये वाली स्ट्रिंग या ये वाला जो लेटर है, राइट, या सब स्ट्रिंग है वो किस इंडेक्स पर है, किस इंडेक्स पे अवेलेबल। Is that clear to everyone, guys? What is the function for index? Index का क्या काम है? Is that clear? Thank you, Bhargav. Okay, fine. Right now, I have one more method to explain you guys, and then I will take those two, magic methods. str1 dot replace, एक replace नाम का मेथड है। ये दो पैरामीटर लेगा। एक तो ये पूछता है कि बताओ भैया किसको रिप्लेस करूं। अब आपकी स्ट्रिंग 1 में क्या है, str1 में ये है, तो मैं वहां से इसको कॉपी कर लेता हूं so that it is visible to everyone, so you have a context, right? So str1 is this, and now I want to replace a, तो मैंने लिख दिया लेटर a, कॉमा लगा के वो भी बता दिया कि किससे रिप्लेस करना है, राइट? तो लेट्स से मैंने इसको रिप्लेस किया z से, फॉर एग्जाम्पल। सो जेड कैसे लिखेंगे? सिंगल कोट में लिख देता हूँ जेड, राइट? तो डबल कोट में लिखो, सिंगल कोट में लिखो, पाइथन में दोनों ही सेम है। सो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, ध्यान दीजिए।
str1 में रिप्लेसमेंट करना है कि जहां जहां पे भी लेटर ए आ रहा हो वहां वहां पे अब क्या दिखाना है, जेड दिखाना है, राइट। तो डिस्प्ले में हमें ये चेंजेस दिखाई देंगे। ओरिजिनल स्ट्रिंग अभी भी एज इट इज है, देयर इज नो चेंज इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग, राइट। सो इस तरीके से जहां जहां पे भी ए था वहां पे अब हमें आउटपुट में जेड दिखाई दे रहे, राइट। तो इस तरीके से ये चीज हमारे साथ हुई है। Now, coming to two important methods here in this in case of a string, सब लोग ध्यान से देखिए। मैंने लिखा str1 is equal to first coding school, ये चीज मैंने यहां पे लिख दी, ठीक है। Now, कृतिका सिंगल का एक सवाल आया है मेरे पास, सर इफ यू वांट टू रिप्लेस ओनली वन वैल्यू ऑफ ए, राइट। सो ऐसा पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट कोई मेथड अवेलेबल नहीं है, आपको कुछ जुगाड़ बिठा करके ही उसको हैंडल करना पड़ेगा कृतिका। देयर इज नो डायरेक्ट मेथड अवेलेबल, राइट। थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी शिवांश, दिस इज str1, राइट। सो नाउ दिस इज str1, ये हमारे पास ये हो गई, ठीक। यस मीट वी कैन डू दैट नाउ। अब इस str1 पर गाइस सब लोग अब ध्यान दीजिए, आपके सवालों के जवाब जो बचे हुए सवाल है, मैं कुछ कुछ सवाल ही लेता हूं बीच में, बचे हुए सवाल कीप देम फॉर द डिस्कशन राउंड गाइस। नाउ str1 पर मैं एक मेथड को कॉल कर रहा हूं गाइस, str1 पे एक मेथड को कॉल कर रहा हूं मैं, उस मेथड का नाम है स्प्लिट, राइट। स्प्लिट जैसा कि मेथड का नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि हमारी स्ट्रिंग को बांट देगा, कई हिस्सों में बांट देगा। अब कैसे बांटता है उसी के बारे में डिस्कशन है। सो आई कॉल दिस फंक्शन स्प्लिट मेथड, राइट। एंड इन स्प्लिट मेथड को मैंने यहाँ पे कॉल किया है एंड सी द आउटपुट गाइस ऑन द कंसोल। कंसोल पे एक बार आउटपुट देखें आप, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे, राइट। देखिए मैंने str1 पे स्प्लिट मेथड कॉल किया और आउटपुट में आपको क्या दिख रहा है, क्या आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स दिख रहे हैं वहां पे, और उसकी जो कहानी है वो लगभग ऐसा लग रहा है कि ये तो सी प्रोग्रामिंग के एरे जैसे लग रहे हैं, और उस एरे में 3 आइटम दिख रहे हैं, राइट। और उस 3 आइटम में आपने देखा होगा कि पहला आइटम तो ये वाला वर्ड है जो कि इस स्पेस से पहले आ रहा था, राइट। फिर देन वी हैव अ कोडिंग एज अ सेकंड आइटम, एंड देन फिर से स्पेस के बाद फिर से हमारे पास जो तीसरा वर्ड था वो तीसरा आइटम। इसका मतलब आपको लग रहा है क्या कि str1 को यार इसने स्पेस जहां जहां पे भी मिला है उसके हिसाब से उसने स्प्लिट कर दिया है, जहां जहां पे भी स्पेस मिला। इसका मतलब जैसे हमने कोई चाकू लिया और चाकू से जहां जहां पे भी स्पेस दिखा वहां कट मार दिए, तो 2 ही स्पेस है तो 2 जगह कट मारे, और 2 जगह कट मारने से 3 आइटम बनेंगे। इसीलिए हमें उस लिस्ट में अब आगे से हम इस एरे को, जो सी प्रोग्रामिंग में जिसको एरे कहते थे, अब इसको हम लिस्ट कहेंगे। इन पाइथन this is a list, and this list now has 3 items, और वो किसकी वजह से है, वो है स्प्लिट मेथड की वजह से, राइट। और स्प्लिट मेथड की वजह से हमें ये 3 चीजें, 3 आइटम हमारी लिस्ट में मिलेंगे। सो गाइस दिस वे वी कैन स्प्लिट अवर स्ट्रिंग। एक और चीज ध्यान रखने की बात है इसमें, स्प्लिट मेथड जरूरी नहीं है हमेशा स्पेस से ही स्प्लिट करेगा। अगर आप कुछ भी इसको पैरामीटर नहीं देते हैं देन ऑब्वियसली ये हमेशा स्प्लिट बाय डिफॉल्ट स्पेस से ही करेगा। बट आप कहते हो कि नहीं साहब मुझे स्पेस से स्प्लिट नहीं चाहिए, मुझे तो स्प्लिट किसी दूसरे कैरेक्टर से चाहिए, मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूं उस कैरेक्टर को। सो आई कैन डू दैट एज वेल। सो आई कैन से str1 डॉट स्प्लिट। स्प्लिट में बोलता हूं कि यार एक काम करते हैं, इस बार आई से स्प्लिट कर दो। और आप देख रहे होंगे इस फास्ट कोडिंग स्कूल वाली स्ट्रिंग में आई सिर्फ एक ही जगह है। इसका मतलब जहां पे आई है वहां पे चाकू चलेगा, वहां पे कट लगेगा, और अगर वहां पे कट लगा तो ये स्ट्रिंग 2 हिस्सों में बटेगी, एक आई से पहले वाली और एक आई के बाद वाली। ध्यान दीजिए आउटपुट में आई नहीं आएगा। पहले वाले एग्जांपल में भी स्प्लिट जब हमने किया था तो स्पेस आउटपुट में नहीं है, स्पेस रिजल्ट में नहीं है, राइट। सो लेट्स डू द स्प्लिट गाइस, राइट। एंड नाउ you see this, we have
two items. So this is the one item and this is the another item. So this list is, having two items right now, right? We can have some other character as well. Let's say I want to split with the O, right? तो अब देखेंगे O यहाँ पे भी है, O यहाँ पे भी है, O चार जगह O दिख रहा है हमें. So this way you get, so many items in the list. So guys, is a split, clear to you that how we can use a split method to convert our string into a list, right? अगर हमें list बनानी है string से तो हम split method को use कर सकते हैं. और हम चाहें तो इसको आउटपुट को एक लिस्ट में स्टोर कर लेते हैं. तो कैसे करेंगे इस बार? list1 is equal to str1 dot split, और इस बार मैं स्पेस से स्प्लिट कर रहा हूं, right? Now there you see, right? Now there is this, you can see कि now हमारा जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, right, वो यहाँ पर एक list1 नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया है. इसीलिए जब मैंने लिखा list1 तो यहाँ पे now you can see the list, right? So इस तरीके से ये चीजें यहाँ पे हुई हैं guys. Okay. नाउ एक और चीज देख लीजिए. यहाँ पे मैं एक लिस्ट लेता हूं, जैसे कि लेट्स से मान लीजिए उस लिस्ट का नाम list2, ठीक है? एंड नाउ हमारे पास, राइट, हमारे पास कुछ यहाँ पे आइटम्स हैं, कपल ऑफ आइटम्स हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फॉर एग्जांपल आई राइट समथिंग लाइक दैट, Indian, okay, and then comma, and then I say Indian Army, right? So now guys, you can see that in the list 2, right, I have two items. One, I can see this Indian, and there I can see Army as the second item. So this list has two items, right? And if I want to know the length of this list, लेंथ ऑफ लिस्ट मतलब कितने आइटम है, तो मैं फिर से एलियन मेथड को ही कॉल करूंगा और इसमें नाम दे दूंगा मेरी लिस्ट का. तो नाउ यू कैन सी दिस इज देयर, here you see the 2, right? So that's there. Now अब ये जो लिस्ट बनी है मेरी, जिसका नाम फिलहाल लिस्ट 2 है, इससे मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट करना चाहता हूँ. इससे मैं क्या क्रिएट करना चाहता हूँ? स्ट्रिंग क्रिएट करना चाहता हूँ. तो वो स्ट्रिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं? अभी तक हमने स्प्लिट मेथड देखा था, उसका काम तो ये था कि स्ट्रिंग से लिस्ट बनाना. अब मैं जो काम कर रहा हूं वो बिल्कुल उल्टा चल रहा है. उसमें मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट है, बट दिस टाइम आई वांट टू क्रिएट अ स्ट्रिंग. अगर आपको लिस्ट से वापस स्ट्रिंग बनानी है तो उसके लिए आपको जिस मेथड को यूज करना चाहिए उसका नाम होता है जॉइन मेथड. तो ये रहा जॉइन मेथड. अब जॉइन मेथड जब यूज करते हैं तो वो मुझसे पूछता है कि भैया लिस्ट क्या है, डेटा कहाँ है, कहाँ पे इंफॉर्मेशन है, किसको ज्वाइन करूं. तो मैंने बोला कि यार देख भैया, मेरे पास तो लिस्ट 2 में पड़ा हुआ है डेटा. बोला ठीक है यार, ज्वाइन कर दूंगा, तूने दे दिया है तो. अब वो पूछता है कि यार अगर तेरे पास कई आइटम होंगे लिस्ट 2 में, एक हर आइटम के बीच में मैं किससे ज्वाइन करूं, मतलब आइटम 1 और आइटम 2 के बीच में क्या ज्वाइनिंग के लिए डालूं. सो आई वांट टू ज्वाइन, आई कैन ज्वाइन योर लिस्ट 2, बट लेट मी नो मैं ज्वाइन किससे करूं. तो हमने उसको बोला कि मैं तुझे बताता हूँ ज्वाइन किससे करना है. तो ज्वाइन से पहले डॉट लगा दिया, और डॉट से भी पहले मैंने उसको बोल दिया कि देख भाई, जहां पे भी तुझे 2 आइटम्स ज्वाइन करने को मिल जाएं उनके बीच में स्पेस ऐड कर देना. सो दिस इज द स्पेस. सो दिस इज बेसिकली जॉइन मेथड, जहां पे हमने एक तो लिस्ट 2 का नाम बता दिया जिसमें हमारा डेटा पड़ा हुआ है, और उसको साथ साथ ये भी हिदायत दे दी है कि भैया तुझे स्पेस से ज्वाइन करना है. एंड सी द आउटपुट गाइस, आई रन दिस पीस ऑफ कोड, दिस लाइन, एंड देयर it joins, right? And now आपने देखा होगा आउटपुट जो है वो एक लिस्ट में आया है, बिकॉज सिंगल कोट आप देख सकते हैं उसके अराउंड. और आप देखेंगे इंडियन और आर्मी के बीच में एक स्पेस आ गया है. वो स्पेस क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है? इसकी वजह से हुआ है, राइट? एंड नाउ अगर आप चाहते हैं कि साहब नहीं, स्पेस से मुझे ज्वाइन नहीं करना, मुझे तो कुछ और लेटर से ज्वाइन करना है, तो वो काम भी करके देख लेते हैं. तो हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको बोलता हूँ कि भैया इस बार तो ज्वाइन एक काम करना, तो स्टार से ज्वाइन करना. सो लिस्ट 2 में जितने भी आइटम्स हैं उनके बीच में क्या आएगा? स्टार आएगा while joining. And now you see the output. That output is now this. So guys, this is the way
we can use two methods. If you have a string and somehow you want to convert it into a list, use a split, right? And if you have a list and you want to make a string out of that list, right, you have to use join method. So kind of a, you know, एक दूसरे के complementary methods हो गए. So guys, is that clear to you that how, you know, list से स्ट्रिंग कन्वर्ट करना हो तो ज्वाइन कैसे करना है, स्ट्रिंग से लिस्ट बनाना हो तो स्प्लिट कैसे यूज करना. इज दैट क्लियर टू यू गाइस? काफी सारे लोग जो है जवाब देते नहीं है. भैया जवाब दो, हाथ को थोड़ा सा खींचो, स्ट्रेच करो, कीबोर्ड पे एक आध बटन दबाने की कोशिश करो, राइट, सो दैट आई गेट ए फीडबैक टू फ्रॉम यू गाइस. ओके कूल. ओके गुड गुड गुड. लिस्ट के बारे में डिटेल डिस्कशन हमारा कल होगा. लिस्ट के बारे में डिटेल डिस्कशन हमारा कल होगा. तो अभी उससे रिलेटेड कोई सवाल है तो उसको अभी आप नोट कर लीजिए, कल हम उसको लेंगे, राइट. नाउ गाइस, अब थोड़ा सा यहां से एक टर्न लेते हैं. नाउ वी आर क्लोजिंग द डिस्कशंस रिलेटेड टू स्ट्रिंग एंड नाउ वी आर मूविंग टू अ न्यू, यू नो, टॉपिक, न्यू, यू नो, दुनिया में, नई दुनिया में चलने वाले हैं. और वो नई दुनिया क्या है कि आज हम लोग क्या, यू नो, और नया सीखने वाले हैं. तो आज हम कुछ और जो नया सीखेंगे उसमें मैं दो चीजें लेने वाला हूं. एक को तो कहते हैं कंट्रोल फ्लो, जिसमें हम यूज करना सीखेंगे इफ को, एल्स को और एलिफ को. और दूसरी चीज हम सीखेंगे लूपिंग के बारे में, जिसमें हम आज आपको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं व्हाइल लूप से और फॉर लूप से. So these are the, you know, next learning items for us in today's session. So first we'll start with the control flow, if, else and elif, and then we'll start with the looping as well, right? Now coming back to our spider screen. Okay, this is our spider screen. So guys, again interesting stuff coming up, so stay tuned. So now let's say, अब थोड़ा सा कुछ और बात करते हैं. मेरे पास फिर से एक स्ट्रिंग आई है str1, ठीक है, जिसमें मैंने कुछ लिख दिया है. लेट्स से मैं अपनी वही पॉपुलर एग्जांपल फॉस्क जयपुर लिख, ठीक. ये मेरे पास एक स्ट्रिंग आई है. नाउ बेस्ड ऑन द स्ट्रिंग लेंथ, इस स्ट्रिंग की जो भी लेंथ है, लेंथ चेक करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, एलियन मेथड से हम पता कर सकते हैं लेंथ, राइट. इस स्ट्रिंग की लेंथ, राइट, अगर 10 से बड़ी है तो मुझे यूजर को एक मैसेज देना है कि अगर लेंथ 10 से बड़ी है, राइट, अगर 10 या 10 से ज्यादा लेंथ है, राइट, तो मुझे यूजर को मैसेज देना है, वो मैसेज देना है लॉन्ग, केयर दैट योर स्ट्रिंग इज लॉन्ग. और अगर 10 से कम है, राइट, सो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इफ द लेंथ इज, यू नो, greater than or equal to 10, then you have to print long to the user, and if it is less than 10, right, तो आपको प्रिंट कराना है शॉर्ट. तो ये दो चीजें मुझे करनी है बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ माय स्ट्रिंग. इन दोनों को मैंने फिलहाल मल्टी लाइन कमेंट में डाल दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं. ट्रिपल कोटेड, यू नो, ट्रिपल कोट्स मैंने यूज किए हैं टू कीप अ मल्टी लाइन कमेंट. सो गाइज, दिस इज माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट. एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि स्ट्रिंग की लेंथ के बेस पर मुझे मैसेज देना यूजर को, राइट. अब हम कैसे चेक कर रहे हैं, कैसे हम अपनी कंडीशन को चेक करें कि भाई स्ट्रिंग की लेंथ अगर 10 या 10 से बड़ी है तो कैसे मैसेज प्रिंट कराना है, और अदरवाइज अगर नहीं है तो फिर कैसे कराना है. तो उसके लिए अब मुझे एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, इफ. सो नाउ यूजिंग इफ कीवर्ड. इफ के बाद मुझे कंडीशन देनी पड़ेगी कि मुझे क्या चेक करना है. तो मुझे चेक करना है कि क्या length of my string str1 is greater than or equal to 10. This is the condition I'm just going to check. क्या मेरे str1 की length, right, क्या मेरे str1 की length जो है, you know, 10 या 10 से बड़ी है. उसके बाद कंडीशन लिखने के बाद देखो मैंने कॉलन लगाया, कॉलन लगाते ही मैंने एंटर प्रेस किया. एंटर प्रेस करते ही देखोगे मेरे कर्सर का जो इंडेंटेशन है, वैसे तो आई के नीचे आना चाहिए था, लेकिन
अब वो आई के नीचे नहीं है, वो आगे शिफ्ट हो गया. बेसिकली इट हैज गॉट 4 स्पेसेस हियर, राइट? एंड देयर आई राइट अ स्टेटमेंट सेइंग प्रिंट. प्रिंट में क्या करना है, इसमें यही चीज लिखी हुई है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, अगर मेरे स्ट्रिंग की लेंथ राइट 10 या 10 से बड़ी है, तो मुझे मैसेज प्रिंट कराना है लॉन्ग. अगर ऐसा नहीं है, राइट, अगर ऐसा नहीं है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कैसे लिखेंगे? तो अब देखेंगे यहाँ पर मैंने फिर से एंटर प्रेस किया है, मेरा इंडेंटेशन अभी भी वहीं पे वहीं है, राइट? अब मुझे बैक स्पेस दबाना पड़ेगा. बैक स्पेस दबाते ही मेरा इंडेंटेशन वापस आई के नीचे आ गया है. यहाँ पे मैं एल्स कंडीशन लिखने वाला हूं, जो कब रन होगी? अगर ये कंडीशन फेल होती है तो ये वाला प्रिंट एग्जीक्यूट नहीं होगा. ये वाला प्रिंट तभी काम करेगा जब ये कंडीशन ट्रू होती है. अब मैं एल्स में लिख रहा हूं, एल्स में कोई कंडीशन नहीं लिखते हैं गाइस, राइट? एल्स में कभी भी कंडीशन नहीं लिखी जाती है, राइट? और सीधा हम यहाँ पे लिख देंगे योर स्ट्रिंग इज शॉर्ट, राइट? So based on the length of our string, we are printing a message to the user. Now let's run it, guys. अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं and let's see what is the output. So now output comes out to be long. Long क्यों आया? क्योंकि मैंने जो स्ट्रिंग यहाँ पे दी है वो एक तरह से हार्ड कोड दी है. मैंने पहले से str1 को फॉस्क जयपुर कर दिया था. क्या मैं यूजर से इनपुट लेकर के चेक कर सकता हूँ इसको? क्या मैं यूजर से इनपुट लेना चालू करूँ इस बार? राइट? सो मैं एक काम करता हूँ, इस इफ से पहले मैं यहाँ पे इनपुट लेता हूँ. तो कैसे इनपुट लेते हैं? इनपुट मेथड से. तो मैंने दिया इनपुट मेथड, मैं एक यूजर को मैसेज भी दे दूंगा, राइट, कि भैया एंटर द टेक्स्ट. तो एंटर द टेक्स्ट, ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी. सो enter the text, guys, and this is the space we have. अब input method से जो चीज भी यूजर से मिलेगी उसको हम str1 नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, राइट? तो अब इनपुट मेथड से हमने डेटा रीड किया और किस में डाल दिया? str1 में. अब हम हमेशा यूजर से पूछते रहेंगे. देखो मैंने सब कुछ सेलेक्ट किया, लाइन नंबर 51 और 56 के बीच में सेलेक्ट करके शिफ्ट एंटर दबाया. शिफ्ट एंटर दबाया तो अब मुझे कंसोल पे एक मैसेज मिलना चाहिए. So let's see if I can get a message. हो सकता है करंट एग्जीक्यूशन को मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ. यहाँ पे देखिए ग्रेड बटन है, फिलहाल मैंने इसको प्रेस किया है. प्रेस करके मैंने फिलहाल जो कुछ भी चल रहा है, राइट, इसको बंद कर दिया है. मैंने इसको सेलेक्ट किया और फिर से इसको यहाँ पे दबाया, राइट. नाउ यू सी एंटर द टेक्स्ट. ये मैसेज मुझे मिल गया है गाइस. और अब मैंने यहाँ पे लिखा फॉस्क, राइट. फॉस्क की जो लेंथ है वो अब 10 या 10 से बड़ी नहीं है, तो कंडीशन हमारी फॉल्स होगी. ये कंडीशन अब काम नहीं करेगी, इसका आउटपुट फॉल्स आएगा. अगर फॉल्स आएगा तो ये वाला प्रिंट नहीं, हमें एल्स वाला प्रिंट मिलेगा आउटपुट में, और हमें आउटपुट में मिला शॉर्ट, राइट. इस तरीके से ये चीजें होने लगी. नाउ लेट्स से इस के बाद मैं अपने क्लाइंट के पास गया कि भैया आपने जो बोला था वो काम हो गया है, मैंने कर दिया. आपने बोला था कि स्ट्रिंग की लेंथ के हिसाब से यूजर को मैसेज प्रिंट करा दो, लॉन्ग या शॉर्ट. अब क्लाइंट बोलता है यार नहीं नहीं एक और चीज आ गई है उसमें. बोलो सब क्या चीज आ गई है? आप एक और काम करो सर, लॉन्ग और शॉर्ट तो प्रिंट कराओ ही, बट एक और स्टेटस प्रिंट कराओ, मीडियम. बोलो मीडियम का प्रिंट कराना है? मीडियम आप प्रिंट तब करवाओ जब आपकी स्ट्रिंग की लेंथ 5 से तो बड़ी है लेकिन 10 से छोटी है. समझ में आया? अगर आपकी स्ट्रिंग लेंथ 5 या 5 से बड़ी है तो कैसे लिखेंगे उसको? 5 या 5 से तो बड़ी है एंड 10 से छोटी है. ये दो कंडीशन, मतलब इस रेंज में अगर लेंथ है तो आपको क्या मैसेज प्रिंट कराना है?
मीडियम प्रिंट कराना है। तो अब मेरे पास तीन चीजें होगी। एक तो मुझे ये चेक करना है कि अगर लेंथ 10 से बड़ी है तो लॉन्ग प्रिंट कराऊंगा, अगर लेंथ 5 से बड़ी लेकिन 10 से छोटी है तो मीडियम प्रिंट कराऊंगा, अगर 5 से छोटी है तो शॉर्ट प्रिंट कराऊंगा। तो इस चीज को अब कैसे हम लोग हैंडल करने वाले हैं उसी के बारे में देखिए। तो एक काम करता हूं, मैं ये जो कोड लिखा है इसको लिख देता हूं वर्जन 1। तो दिस इज माय वर्जन 1 गाइस। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, मैं नीचे आ गया यहाँ पे, राइट, इसको कमेंट कर देता हूं, ये कमेंट हुआ। अब मैं यहाँ पर देखेंगे इफ कंडीशन में मैं अभी ये चेक कर रहा हूँ कि क्या लेंथ 10 या 10 से बड़ी है, फिर मैंने ये लिख दिया। अब मैं यहाँ पे देखिए एंटर प्रेस कर रहा हूँ, मेरा कर्सर अभी भी यहीं पे है, मैं वापस अपना बैक स्पेस दबाया। इस बार मैं यहाँ पे एक नया कीवर्ड लिखने वाला हूँ एलिफ, राइट। एलिफ में अब मैं उस मीडियम के लिए कंडीशन लिखूंगा कि मुझे मीडियम कब चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भैया len str1 str1 का लेंथ अगर 5 या 5 से बड़ा है एंड 10 से छोटा है, तो मैंने एंड लिखा यहाँ पे, एंड देखिए मैंने कलर में दिख रहा होगा, और एंड लिखा मैंने यहाँ पे कि अगर लेंथ ऑफ str1 लेंथ ऑफ str1 इज लेस देन 10, राइट। सो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं सो दैट गाइस इट इज विजिबल टू यू एज वेल, राइट। सो ये चीज यहाँ पे हुई है, हमने यहाँ पे इसको पढ़ा है। सो दिस इज द वे गाइस। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हम शुरुआत कर रहे हैं इफ कंडीशन से, इफ द लेंथ ऑफ माय स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 आई विल से प्रिंट लॉन्ग। एलिफ अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो अब मैं यहाँ पे कॉलन लगा रहा हूं और अब मैं इसको प्रिंट कर दूंगा कि भैया यहाँ पे तुझे प्रिंट करना है मीडियम, राइट। सो आई वुड से मीडियम। सो ये मेरा मीडियम हो गया। अब ये एक कंडीशन यहाँ पे हो गई है। तो नाउ लेट्स गाइस सेलेक्ट इट, और अब हम इस बार फिर से इसको रन करके देखते हैं। और इसको अगर रन करके देखते हैं तो अब हम फिर से पूछा जा रहा है कि एंटर द टेक्स्ट। मैंने इस बार फर्स्ट डाल दिया है फिर से, और इस बार आउटपुट आया है मीडियम। व्हाई इट इज वर्किंग मीडियम गाइस, हमारी शुरुआत यहाँ से होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ना तो ये एलिफ में जाएगा ना एल्स में जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो अब वो नेक्स्ट कंडीशन जो एलिफ के अंदर लिखी हुई है उसको चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, एल्स वाला प्रिंट नहीं होगा, वो यहीं से गायब हो गया, अब आगे कोई भी चेक नहीं होगा। अगर ये कंडीशन भी फेल हो गई, ना तो इफ सही रहा ना एलिफ सही रहा, तो फाइनली कौन एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सो दिस इज हाउ इफ एलिफ एंड एल्स वर्क्स in case of in case of Python, and you can use multiple alifs, so you can have one more alif as well here. यहाँ पे आप चाहें तो एक और alif लिख सकते हैं, that is up to, so you can have as many alifs as you want. तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। सी प्रोग्रामिंग की तरह यहाँ पे स्विच करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, स्विच नाम का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे इफ, एलिफ और एल्स को यूज किया है। सो गाइज इज दैट क्लियर टू यू, राइट। बताएं जरा एक बार, इज दैट क्लियर कि हम लोग इफ, एलिफ और एल्स को कैसे यूज करते हैं, कैसे लेंथ के बेस पर हम मैसेज प्रिंट करा रहे हैं यूजर को। Okay, lot of people raising hands, lot of people giving the feedback in chat window. Thank you. That's good. Shivansh from Jaipur saying clear, sir. Okay, thank you. So यहाँ पर ये हुआ। अब एक चीज बताओ, ठीक है। इफ के अंदर भी इफ है, इफ हो सकता है, राइट। इफ के अंदर भी इफ हो सकता है, यू कैन हैव नेस्टेड इफ, राइट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब मैं इस कोड को वापस क्लाइंट के पास लेके गया, ठीक है। क्लाइंट को मैंने ये कोड रन करके दिखाया, क्लाइंट खुश ही नहीं हुआ, बोले यार नहीं यार, ये तो एक मुझे तो बार बार रन करना पड़ रहा है यार, ये क्या मतलब हुआ योगेंद्र, ये तो आपको बार बार सेलेक्ट करो शिफ्ट एंटर दबाओ, फिर सेलेक्ट करो शिफ्ट एंटर दबाओ, हर 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 स्ट्रिंग के लिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है, राइट।
तो मैंने उसको बोला कि ठीक है सर कोई बात नहीं, मैं इसको एक लूप के अंदर डाल देता हूं। बोले लूप क्या होता है? बोले लूप सर क्या होगा कि लूप से ये सेट ऑफ स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होते रहेंगे, राइट? ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट होते रहेंगे। बोले यार ये काम ठीक है, इसको तू लूप में डाल दे। तो फिर मैंने क्या किया, इसको तो कर दिया कोड को कि दिस इज वर्जन 2। सो मैंने बोला कि सर ये देखो वर्जन 2 है, बाद में कभी चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। And now we will write our own new version which is version 3। वर्जन 3 की क्या खासियत है कि ये जो काम अभी वर्जन 2 में हो रहा है ये एक ही बार होता है, मुझे ये काम बार बार रिपीट करना है। तो अगर आपको कोई काम, कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीट करने हो तो यू हैव टू यूज लूपिंग। पाइथन में दो तरीके के लूप होते हैं, व्हाइल है या फिर फोर है। तो एक काम करते हैं, वी यूज व्हाइल लूप है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक व्हाइल लूप लिखा। तो ये रहा देखो सब व्हाइल लूप, ठीक है, ठीक है, ये व्हाइल लूप लिख दिया। व्हाइल लिखने के बाद यहाँ पे लिखी जाती है कंडीशन। क्या लिख देते हैं यहाँ पे? कंडीशन लिख देते हैं, ठीक है। कंडीशन लिखने के लिए लेट से मैंने फिलहाल इसको एक कंडीशन ऐसी दी है जो हमेशा ट्रू है, तो मैंने इसको बोला ट्रू। इसका क्या मतलब है, राइट? इसका मतलब ये है कि ये काम करते जाना है, चलते जाओ। कंडीशन लिखने के बाद मैंने कॉलन लगा दिया। कॉलन लगाने के बाद मैंने यहां पर प्रिंट लिख दिया हेलो। तो अब देखो जरा, व्हाइल लूप स्टार्ट होने वाला है, कंडीशन ट्रू है, दैट मींस इट इज ए इन्फिनिट लूप नाउ, राइट? बिकॉज कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू, एंड कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू, दैट मींस as long as the condition is true, loop is going on, and then we have a print। आपने इंडेंटेशन पे ध्यान दिया होगा गाइस, यहाँ पे मैंने कॉलन प्रेस किया, कॉलन प्रेस करते ही मैंने एंटर मारा, एंटर मारते ही मेरा इंडेंटेशन चेंज हुआ, इंडेंटेशन चेंज होते वहां पे जाके मैंने ये चीज लिखी है। तो ये जो स्टेटमेंट है प्रिंट, ये एक्चुअली व्हाइल का पार्ट है। और ये वाला अगर प्रिंट में लिख दूं यहाँ पे प्रिंट, राइट, तो ये एक्चुअली नॉट इन व्हाइल। ये स्टेटमेंट जो है ये व्हाइल का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इंडेंटेशन से ही पता चलता है कि कौन लूप का हिस्सा है, कौन नहीं है, कौन इफ का हिस्सा है या नहीं है, कौन एलिफ का हिस्सा है या नहीं है, राइट? तो ये तो आउट ऑफ व्हाइल वाला लूप है, स्टेटमेंट है, और ये वाला within while वाला statement। तो guys, if I select these two lines and run, now see this, I'm getting hello 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 print होता है infinite loop। यार ये तो गड़बड़ हो गई, इसको तो रोकना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, रोकने के लिए हमारे पास यहाँ पे ब्रह्मास्त्र है, ये देखो रेड बटन। तो मैंने इसको बटन को दबाया, इंटरप्ट हुआ, एंड माय लूप इज आउट। ये प्रोग्रामेटिकली एग्जिट नहीं था, ये तो फोर्सफुल एग्जिट था, हमने जबरदस्ती उसको एग्जिट कर दिया। कंडीशन ट्रू बनी हुई है, लेकिन फिर भी हमने उस रेड बटन को दबा दिया। बट मुझे हेलो थोड़ी प्रिंट करना था, मुझे तो अपना ये पीस ऑफ कोड चाहिए व्हाइल के अंदर। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, इस प्रिंट को हटाया और इसकी जगह यहाँ पे ये लिख दिया। पेस्ट करने में थोड़ा सा इंडेंटेशन चेंज हो गया है, तो कोई बात नहीं, मैं इस इंडेंटेशन को करेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट किया, टैब दबाया, टैब दबाते ही आपने देखा होगा अब इफ वाले स्टेटमेंट भी मेरे व्हाइल का हिस्सा बन चुके हैं। सो दिस इज गाइज, नाउ यू सी व्हाइल लूप के अंदर, जो कि अब नाउ एक इन्फिनिट लूप है, और इस इन्फिनिट लूप में मैं बार बार यूजर से इनपुट लेता जाऊंगा, और यूजर से जब इनपुट लूंगा तो मैं लेंथ के बेस पर प्रिंट कराता जाऊंगा कि लेंथ शॉर्ट है या लॉन्ग है या मीडियम है। सो नाउ गाइज लेट्स रन दिस पीस ऑफ कोड। सो नाउ दिस इज सेलेक्टेड एंड नाउ वी आर हियर। जब हम यहाँ पे आ गए हैं तो अब मुझसे पूछ रहा है एंटर द टेक्स्ट। तो मैंने देखिए यहाँ पे लिख दिया फॉस्क जयपुर, लेट्स से। जब मैंने लिखा फॉस्क जयपुर तो दिया उसने लॉन्ग, अभी भी लूप के अंदर ही है, तो फिर से पूछने लग गया एंटर द टेक्स्ट। तो इस बार मैंने डाल दिया फॉस्क, तो बोलने लगा साहब लेंथ मीडियम है, फिर भी अभी भी लूप में बना हुआ है। तो इस बार मैंने डाल दिया कुछ PUR, तो इस बार उसने शॉर्ट दे दिया, अभी भी बना हुआ है, लूप में तो बना ही रहेगा क्योंकि कंडीशन ऑलवेज ट्रू है। तो अब हम लूप से कैसे बाहर आए? तो लूप से बाहर आने के लिए तो फिलहाल यही तरीका है कि आई हैव टू प्रेस दिस रेड बटन एंड आई एम आउट ऑफ द लूप। बट यार ये रेड बटन कब तक प्रेस करेंगे? एक काम करते हैं, एक कंडीशन चेक करते हैं यहाँ पे कि अगर यूजर ने बिना कुछ टेक्स्ट एंटर किए, बिना कुछ टेक्स्ट दिए, अगर यूजर ने बिना कुछ टेक्स्ट दिए एंटर प्रेस कर दिया, इसका मतलब ब्लैंक उसने इनपुट दिया है, तब हमें लूप से बाहर आना पड़ेगा। तब हमें क्या आना पड़ेगा? लूप से बाहर आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं जिसको कैसे लिखते हैं, इफ नॉट str1। इसका मतलब ये है गाइस
कि अगर str1 में कुछ नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और कंडीशन ट्रू होगी तो मैं एक स्टेटमेंट लिख दूंगा इसको ब्रेक। इसका मतलब क्या है कि अगर str1 में कुछ भी नहीं पाया गया, str1 अगर ब्लैंक आया है, यूजर ने ब्लैंक एंटर कर दिया है विदाउट राइटिंग एनीथिंग, उसने डायरेक्टली एंटर बटन प्रेस कर दिया है, तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये हमेशा फॉल्स रहेगा, राइट। अगर ये ट्रू होता है तो हमें क्या मिलेगा, ब्रेक। और ब्रेक क्या करता है, ब्रेक मिलते ही लूप टर्मिनेट हो जाता है। ब्रेक मिलते ही लूप टर्मिनेट हो जाता है। ये सी में भी होता है, जावा में भी होता है, और हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, नॉट इन इवन इन पाइथन, राइट। अब आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि ऐसा क्यों होगा। देखो यहाँ पे लेट से str1 आया मेरा, मैं अब कंसोल पे चला गया हूँ गाइस, str1 आया और यहाँ पे लिख दिया मैंने फॉल्स, ठीक है। अब देखो मैंने लिखा नॉट str1, तो क्या आउटपुट देता है ये, फॉल्स। इसका मतलब str1 में अगर कुछ लिखा हुआ है तो नॉट str1 हमेशा ही फॉल्स देगा। अगर मैंने str1 ब्लैंक ले लिया, जैसे कि इस केस में लिया, देखो ब्लैंक ले दिया, कुछ भी दिए हुए बिना, राइट, यहाँ पे देखो, और अब मैंने लिखा नॉट str1, तो क्या रिटर्न करता है इस बार, ट्रू। इसका मतलब ये कंडीशन कब ट्रू होगी, ये वाला इफ, ये वाला कंडीशन तभी ट्रू होगा जब str1 में कुछ भी नहीं आएगा, और कुछ भी अगर नहीं आएगा तो हमने क्या किया, ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, इट टर्मिनेट्स द लूप। तो व्हाइल लूप जो चलता जा रहा है इन्फिनिटली, कब टर्मिनेट होगा, ब्रेक मिलते ही। और ब्रेक कब मिलेगा, जब str1 में कुछ नहीं होगा। और str1 में कुछ कब नहीं होगा, जब यूजर डायरेक्टली without writing anything enter press कर देगा। So now we have a new version guys which handles couple of conditions. Now see guys, enter the text, we are here again, and then I say first, I get the answer medium, I enter one more Jaipur, kind of that, I can do something। इस तरीके से मेरे पास चीजें यहाँ पे हैं। और अब मैंने बिना कुछ लिखे हुए एंटर प्रेस कर दिया है, एंटर प्रेस करते देखिए लूप आउट हो गया है, और लूप आउट हुआ है तभी हमें वापस से कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे मिला है। सो गाइस, इज दैट क्लियर कि अब हमने किस तरीके से मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को क्लब करके एक फाइनल वर्जन क्रिएट किया है, राइट, कि कैसे व्हाइल को अप्लाई किया, कैसे इफ को अप्लाई किया, कैसे नॉट str1 कंडीशन को चेक किया, राइट, कैसे एलिफ को यूज कर रहे हैं, किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं। दिस इज अ न्यू वर्जन ऑफ अवर कोड। सुनीता एक बार संदीप से चेक कर लीजिए, ठीक है, ये चीज हुई। नाउ अब हम एक चीज देखते हैं। I'll continue with the while tomorrow as well, so guys don't worry, right। मैं कल भी जब लिस्ट की बात करूंगा तभी भी while को दोबारा से लूंगा, लेता रहूंगा, तो कई बार जब मैं लूंगा तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। आज इसकी एक फर्स्ट इसका ट्रेलर था। We'll continue with the while, Dr. Lovely Sharma। Now guys, I have a list, guys, we are into the लास्ट डिस्कशन नाउ, एंड देन उसके बाद हम ब्रेक लेंगे, ठीक है। मेरे पास एक लिस्ट 1 है, ठीक है, इसमें कुछ आइटम लिखे हुए हैं। तो क्या आइटम लिखे हुए हैं, सो लेट से लिखे हुए हैं कि साहब जयपुर में कौन कौन सी मेजर सिटीज हैं जहाँ पे फिलहाल कोरोना का हॉट स्पॉट बना हुआ है। तो मैंने लिखा कि साहब देखो, एक तो जयपुर में हॉट स्पॉट है, ओके फाइन। व्हाट इज द नेक्स्ट हॉट स्पॉट, किस साहब कोटा में भी फैल रहा है, ओके, और कहाँ फैला हुआ है कि साहब ये तो जोधपुर में भी है, फाइन, ठीक है, और कहाँ पे है कि साहब रिसेंटली उदयपुर में भी आउटब्रेक हुआ है। सो नाउ वी हैव उदयपुर एज वेल, सो कपल ऑफ सिटीज वी हैव गाइस, राइट। सो नाउ दिस इज अवर लिस्ट, ये हमारी लिस्ट 1। अब इस लिस्ट 1 में जितने भी आइटम लिखे हुए हैं, आपने देखा होगा अंदर एक स्ट्रिंग है जयपुर पहला आइटम, कोटा दूसरी स्ट्रिंग है सेकंड आइटम, जोधपुर थर्ड स्ट्रिंग है तीसरा आइटम, एंड उदयपुर फाइनली द लास्ट आइटम इन आवर लिस्ट। क्या मैं इस लिस्ट 1 में जितने भी सिटी नेम्स लिखे हुए हैं उनको एक एक करके प्रिंट कर सकता हूं? Yes, I can do that. And how to do that, guys? Let's focus on the screen. I use a for loop. So there is a loop for. मैंने लिखा फॉर ईच सिटी, गाइज मैं बोल रहा हूं ईच लेकिन लिख नहीं रहा हूं, ध्यान दीजिए, फॉर ईच सिटी इन लिस्ट 1, राइट, कॉलन
लगाया, एंटर प्रेस किया, इंडेंटेशन चेंज हुआ और प्रिंट कराया किसको, सिटी, राइट। सो गाइस देखिए यहाँ ये कैसे काम कर रहा है, फॉर ईच सिटी इन लिस्ट वन प्रिंट सिटी एंड सी द आउटपुट। गाइस आउटपुट देखें जरा एक बार क्या आ रहा है। आउटपुट आया है एक एक करके, जयपुर, फिर कोटा, फिर जोधपुर, फिर उदयपुर। अब ये काम कैसे कर रहा है समझ लीजिए इस चीज को। जब ये लूप पहली बार चल रहा है, when this loop runs for the first time, सिटी में जयपुर होगा तो सिटी में क्या आएगा, जयपुर। दूसरी बार लूप चलेगा तो सिटी में कोटा आएगा, तीसरी बार लूप चलेगा तो सिटी में जोधपुर आएगा, और चौथी बार चलेगा तो सिटी में उदयपुर आएगा, राइट। सो व्हेन लूप इज रनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सिटी इज डायरेक्टली रेफरिंग टू जयपुर, राइट। सेकेंड टाइम सिटी इज डायरेक्टली रेफरिंग टू कोटा। ये जो नाम मैं यहाँ पे सिटी रखा है वो नाम आप जो चाहें वो रख सकते हैं। ये तो जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए, जस्ट टू गेट ए कनेक्ट यू नो विद द करंट सिनेरियो, मैंने सिटी रखा, राइट। आप इसको बोल सकते हो कि फॉर ईच एक्स इन लिस्ट वन, तो मैं बोलूंगा इस केस में प्रिंट एक्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एक्स लिया है, तो प्रिंट भी एक्स ही कराना पड़ेगा, राइट। इसको जैसे इस केस में मैंने सिटी लिया है, इस केस में एक्स लिया है, इसको कहते हैं बेसिकली इटरेटर। क्या बोलते हैं इसको, इटरेटर कहते हैं। तो जब लूप पहली बार चलेगा तो इटरेटर में क्या आएगा, जयपुर। दूसरी बार लूप चलेगा तो इटरेटर में क्या आएगा, कोटा, जोधपुर एंड उदयपुर एंड सो ऑन। सो दिस इज द वे यू कैन हैव एनी, यू नो, अगर आपको यू नो कुछ भी नाम यहाँ पे देना, दैट यू कैन कीप, राइट। So this is the way that using a for, generally Python को for loop को for each कहते हैं। जिन लोगों को जावा का थोड़ा नॉलेज है, जावा में भी पता होगा आपको कि जावा में भी for each आता है, right? So this is the way guys that we can print the individual items from the given list using a for loop. So guys, is that clear to you? For loop clear हुआ, जिसको हम for each कहेंगे आगे से। each बोल रहा हूं लेकिन लिख नहीं रहा हूं, right? Okay, so a lot of people saying okay. Now अब हम दो चीजों को और देखेंगे यहाँ पे इसी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने अपनी लिस्ट को यहाँ से लिया, मैंने अपनी लिस्ट को यहाँ से लिया, तो दिस इज माय लिस्ट, ठीक है। अब मैं कुछ जो लिख रहा हूँ उसको देख करके आपको बताना है कि उसका आउटपुट क्या होगा, क्योंकि मैं अब काफी सारी चीजें समझा चुका हूँ। आई वॉन्ट टू टेस्ट योर नॉलेज नाउ। टेस्ट मतलब डराने के लिए टेस्ट है, बाकी कुछ ऐसा नहीं, सीखने के लिए आज से सब चीजें हो रही हैं। So list one is equal to Jaipur, Kota, Jodhpur, Udaipur. Now I write a piece of code, guys, and let me know what happens in that case. For each city in list one, right? Now I'm just saying if city, right? If city is equal to, or rather than equal to, I should say not equal, so that आपको दोनों चीजें पता चल जाए। So I say if city not equal to Jodhpur, or should I change it to equal to only? Okay, let's say मैं इसको equal to ही करता हूँ, ठीक रहेगा, दोनों चीजें ले लूँगा। So if city is equal to Jodhpur, right? ब्रेक, ये हुआ, और उसके बाद मैंने एंटर मारा। एंटर मारते मेरा इंडेंटेशन फिलहाल आई के नीचे आ गया। इसका मतलब यहाँ पे जो मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा वो इफ का हिस्सा नहीं है, वो नॉर्मल प्रिंट है फॉर लूप के लिए, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सिटी। सो गाइस सी, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि अगर सिटी जोधपुर आती है तो ब्रेक कर देना है, राइट। और अगर ब्रेक नहीं होता है तो हमें सिंपली क्या करना है, वी हैव टू प्रिंट द सिटी नेम। सो गाइस लेट मी नो व्हाट वुड बी द आउटपुट इन दिस केस। So people saying Jaipur Kota, okay, okay, guys. So now let's see, run it, and then we'll see this. जयपुर और कोटा क्यों हुआ ऐसा देख लेते हैं एक बार। जब पहली बार लूप चला तो सिटी में क्या है, जयपुर। अगर सिटी जयपुर है तो हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, जोधपुर के, तो वो तो कंपैरिजन ट्रू नहीं हुआ, क्योंकि इधर तो जयपुर है सिटी में और राइट साइड में जोधपुर लिखा हुआ है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ब्रेक भी नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा तो we would be able to print the city name।
फिर दोबारा लूप चला तो सिटी में कोटा आया, कोटा वाली कंडीशन में भी ये चीज सही नहीं है क्योंकि इधर कोटा है उधर जोधपुर है, तो कोई कंपैरिजन नहीं हुआ, तो ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, तो फिर से हमने सिटी का नाम प्रिंट कर दिया, राइट। एंड अब जब तीसरी बार लूप चला तो सिटी में जोधपुर आया, तो इधर भी जोधपुर सिटी में और लिखा हुआ भी जोधपुर है, तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू हो गई है, कंडीशन ट्रू हो गई है, राइट। नाउ तो फिर हमें ब्रेक लिखना पड़ा, राइट। तो आप ध्यान दीजिए, इक्वल टू के लिए कंपैरिजन जब करना हो तो 2 बार इक्वल टू का साइन यूज करना पड़ता है, और असाइनमेंट करना हो तो एक ही बार इक्वल टू का साइन। आई थिंक दिस इज वेरी कॉमन टू एवरीवन नाउ। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस चीज को लिखा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन गाइस? तो ब्रेक सिर्फ व्हाइल में नहीं, फॉर में भी यूज हो सकता है, सब जगह यूज होगा, ठीक है। नाउ एक और चीज आप देखना, इसको एक और चीज करते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूं, जो आज की जो लास्ट चीज है, राइट। यहां पे मैंने लिखा ये सेम, बट इस बार ब्रेक की जगह, सो मैंने ब्रेक हटा दिया और इस बार मैंने यहां पे लिखा कंटिन्यू। आई हैव अ न्यू कीवर्ड फॉर यू गाइस, कंटिन्यू, राइट। हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क, मैं एक बार आउटपुट में दिखाऊंगा इसको और फिर आपको पता चलेगा कि इसने क्या किया। आप सोचना खुद से कि अगर सिटी इज इक्वल टू जोधपुर हो जाए तो कंटिन्यू करना है। अब क्या मतलब है इसका, लेट्स लर्न दैट। सपोर्ट सी द आउटपुट गाइस, क्या आया आउटपुट में, जयपुर आया, कोटा आया, उदयपुर आया, बस जोधपुर नहीं आया। अब क्यों नहीं आया उसके पीछे समझ लीजिए। पहली चीज तो इस ब्रेक को बहुत क्लियरली समझना है कि जहां पे ब्रेक मिला, रास्ते में अगर कहीं पे भी लूप के रास्ते में जहां पे भी अगर ब्रेक मिल जाता है, लूप गेट्स टर्मिनेटेड, लूप गेट्स टर्मिनेटेड, दैट्स इट, राइट। what happens in case of continue, that's let's discuss on that part as well. यहां पे हम सिंपली ये कर रहे हैं कि if city is equal to जोधपुर तो कंटिन्यू का मतलब ये है गाइस कि कंटिन्यू मिलते ही सिर्फ एक काम होगा कि कंटिन्यू के बाद जितने भी स्टेटमेंट हैं वो स्किप हो जाते हैं, लेकिन लूप से बाहर नहीं जाना है, राइट। तो कंटिन्यू मिलते ही क्या होता है कि उसके बाद जितने भी सेट ऑफ स्टेटमेंट लूप में लिखे गए हैं वो एक बार के लिए स्किप हो जाएंगे, लेकिन लूप चलता रहेगा। इसका मतलब जैसे ही सिटी इज इक्वल टू जोधपुर है तो कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू मिल गया तो इसका मतलब ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट स्किप करना है, और अगर स्किप करना है तो जोधपुर प्रिंट ही नहीं होगा, लेकिन लूप में बने हुए रहेंगे। तो अगली बार सिटी में क्या आ जाएगा, उदयपुर आएगा तो उदयपुर भी प्रिंट हो जाएगा। तो पहली बार चले तो जयपुर है, कंटिन्यू मिलेगा ही नहीं तो प्रिंट हो गई सिटी। तो दूसरी बार चले तो सिटी में कोटा है, फिर से कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो कंटिन्यू मिलेगा ही नहीं तो सिटी भी प्रिंट हो गई। फिर तीसरी बार चले तो सिटी में जोधपुर आया, जोधपुर आते ही कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू होते ही कंटिन्यू मिला, कंटिन्यू मिलते ही हमारा ये प्रिंट स्टेटमेंट स्किप होगा, स्किप होते ही जोधपुर प्रिंट नहीं हुआ। फिर से हम अभी भी लूप में बने हुए हैं, इस बार सिटी उदयपुर है, उदयपुर इज नॉट इक्वल टू जोधपुर, राइट। तो अभी भी हमें कंडीशन जो है हमारी फॉल्स है, और अब इस बार फिर से कंटिन्यू नहीं मिलने वाला है और आपने उदयपुर को भी प्रिंट करा दिया है। So this is the way guys, right? So this is how you have to differentiate between continue and a break, and depending on the problem statement you have to go either with break or either with continue. It depends on the problem statement, right? So this is all about for today's discussion guys. Let me share your feedback. How was the class today? कैसा रही आज की क्लास? और फिर हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे अपने सवाल जवाबों के साथ। So a lot of people now saying class was wonderful from Nimesh Joshi, Vandana, so many names coming up so in a very quick manner, so I'm not able to get a hold of what people are saying. Okay. So okay, so let me say Kratika Singhal saying awesome, Aditya was saying awesome, Vishal Vakil कह रहे हैं कि a for loop here we does not require to give increment, right? Yes, for loop की Python में खासियत यही है कि जैसे C में वो इंडेक्स वगैरह इंक्रीमेंट करते थे, यहाँ कुछ इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही इंटरनली मैनेज करता है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन विशाल, राइट। आपने देखा होगा हम यहाँ पे कहीं पे भी हमने कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं किया है। इट इज इटरेटर अपने आप उस चीज का ध्यान रखता है। इशिता जैन सेइंग ग्रेट,
Sir Prince saying awesome. Australia from Ganganagar saying very nice. Dr. Puneet Sapra saying good. Tanvi Khandal from Jaipur saying very useful. Satyanarayan Seni saying nice. Vikram Gupta marvelous. TVM MI nice sir. Gaganpreet Wadhwa very good. Nimesh Joshi class was wonderful. Sehjad Qureshi best one sir. Vandana Lohar interesting. Ramandeep Kaur Sani clear excellent sir from Deepika Kalyan. And so many पंकज शर्मा कह रहे हैं एक नंबर है सर ओके आदित्य वाज सिंह लर्निंग अ लॉट प्रभुद मिश्रा कह रहे हैं सर वेरी नाइस एंड इंटरेक्टिव अर्पिता कह रही हैं ग्रेट अभय कोले सर हैं कल बात हुई थी इनसे फैकल्टी हैं नाइस राहुल अहमदाबाद से हैं कह रहे हैं इट वाज ऑसम ओके सो लॉट ऑफ पीपल कुछ लोग कह रहे हैं हेल्पफुल थी कुछ लोग कह रहे हैं भवनेश जांगिर कह रहे हैं कि सर नाइस क्लास सर ओके हर्षवर्धन सिसोदिया कह रहे हैं कि मजा आ गया सर ओके श्रेयांश जैन जो 7th क्लास के स्टूडेंट हैं वो कह रहे हैं सर इट वाज ग्रेट सेशन आई लाइक इट वेरी मच थैंक यू श्रेयांश उनकी सिस्टर ने भी कुछ मैसेज अभी लिखा था ओके सिद्धार्थ फ्रॉम डांगगर आई डोंट नो वेयर इट इज और ये सब मेरा आपका मुझे नहीं पता है द क्लास वाज वेरी हेल्पफुल ओके सो लॉट ऑफ पीपल आई थिंक सो प्रिंस सोनी सेइंग परफेक्ट प्रिंस रेगुलर अटेंडी हैं क्लासेस के So, केशव कंसल कह रहे हैं कि सर नाइस क्लास बट कल के असाइनमेंट के सॉल्यूशन समझा देते केशव लास्ट डे सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन ही डिस्कस होंगे ठीक है लास्ट डे सिर्फ सॉल्यूशन डिस्कस होंगे सहजाद कुरैशी कह रहे हैं यू आर अमेजिंग सर क्या बात है थैंक यू सहजाद सो आज भी कुछ असाइनमेंट्स हैं उनको सिल्वेस्टर सर आपको एक्सप्लेन करेंगे बिफोर आई गो फॉर द ब्रेक लेट मी ओपन दैट विंडो So here I open the window guys कल के solution folder में upload हो गए हैं guys right और अब हम लोग assignments आज के assignments की बात करेंगे so let me double click on that there we have so day 1 already हो चुका है आज हमारी day 2 की चर्चा होगी so day 2 में कुछ assignments आपके पास यहाँ पे हैं so day 2 I think it is okay so day 3 is that okay Sylvester sir ठीक है सर अभी वैसे 3 असाइनमेंट्स है आज के वापस सब आ जाओ जब कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बच्चे को एक बार ऐसा रन करके दिखाना पड़ेगा जब समझ में आता है ओके सो निमिष जोशी कह रहे हैं सर मेरे स्पाइडर में डिस्प्ले नहीं हो रहा है आउटपुट को एक बार संदीप से कांटेक्ट कर लीजिए सर मैंने एक और सर आप एक बार वो दिखाएंगे ड्राइव दिखाएंगे गोल्ड ड्राइव इसी में बैक जाइए सर आप जिन लोगों को रन सेल की एरर आ रही है सबसे नीचे मैंने एक फाइल को अपलोड किया है ओके स्टेप्स टू सॉल्व रन सेल एरर ओके आप जब इस पे जाएंगे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है इज दिस क्लियर गाइस एक पीडीएफ भी है 2 फाइल मैंने अपलोड कर रखी है वहां पे सो यहाँ पे अब मुझे वापस जाऊँ असाइनमेंट्स में हाँ सर असाइनमेंट चलिए so guys here you have your assignments for today assignment 3 and assignment 4 I'll come back sir okay let me save the file so I'll be back Good evening, everybody. The bad guy is back again, huh? So again, your assignments for today. So today is day 2. Yad Tane Surana, those people who do not have any doubts and those people who can self-understand all the assignments, if they people want, they can leave the session, no issues. Okay? So today is day 2 guys and we have got 3 assignments today. Yesterday there were 2 assignments, today there are 3 assignments. The first assignment is clean the messy celery. Okay, if you people can concentrate on the screen, you'll see I have created a variable by the name of salary, and if you see the salary, it is in single quotes. That means you are trying to store
some text value or some string in the variable. And if I look at the value what you're trying to save, it says $876, 001. So what you people need to do is you need to clean this messy salary into integer, because I want to do some data processing and I want to increase the salary by 10%. So if I want to increase the salary by 10%, I'll be able to achieve that only when the value in the salary is in the form of integer. But as you can see on the screen, the salary is having a dollar sign also, the salary is having a comma also. Okay, so you need to do three things. So this is the task what you need to perform in assignment number 3. The first is remove the dollar. Okay, second is you need to remove the comma also, and the third is you need to convert the string into integer. So I've also given you a hint also, people, that if you want to remove the dollar sign, Yogendra sir explained you the concept of slicing. Do you people remember the concept of slicing? Or if you want, you can use the replace method, not the remove method. You can use what? The replace method can also be used here. If you want to remove the comma, you can use a technique of split and join. You learned it today, no? Can you split your text into two parts from comma and then do what? Again join the words. This can be another way. And the third thing, that is conversion of a string to integer. You people were taught a concept of typecasting. You remember the concept of typecasting? You can use the integer function as a typecast to convert into integer. So to make your assignment easy, I have also provided some help. So you people can now create a file by the name of salary.py. Is this clear to you people? It's a simple clean the messy salary assignment. You need to apply 3 tasks. The first task, remove the dollar sign. Second task, remove the comma. And the third task, convert the string into integer. Let's move towards assignment number 4. Okay. The assignment number 4 says the name of the assignment is senior citizen, and the file what you need to create is if-else.py. What you need to do is, I have explained in the problem statement, you need to take input from the user, the age. Okay, as a word of caution, whenever you take input from the user, it always stores that value in a string. So you need to do a typecasting to convert that data into what? Integer. This is the first thing. Second is, now you need to print, depending on the age, whether the user whose age you have provided is an infant, is a child, is an adult, or a senior citizen. So you need to print these 4 things depending on the age, whether he is an infant, a child, an adult, or a senior citizen. And for a hint, I have given you that if you need to achieve a solution for this problem, you need to use the concept of if, elif, and else. Okay, so today you were taught the concept of if, elif, and else. You need to use this concept to solve this problem. Okay, and to define an infant,
An infant is a person whose age is greater than 0 but less than equal to 1. That's my definition what I've given. A child is whoever has age is greater than 1 and less than equal to 18. An adult is a person whose age is greater than 18 and less than equal to 60. And anybody whose age is above 60 is a senior citizen. And you need to solve this problem and write your code in a file by the name of if-else.py file. Guys, tell me, is this clear? There is one more assignment, but when Yogendra sir comes, I'll be able to explain because I don't have a control on his system. So you can respond to me on my chat if it's clear. Good. Everybody's saying yes sir, yes sir. Clear. Satya Narayan is saying, what do you mean by infant? Infant का मतलब छोटा बच्चा सत्या, जिसकी एज ग्रेटर देन 0 हो, लेस देन इक्वल टू 1 हो. Nimish is saying, sir, can we ask doubts of the session which happened today? Just wait, Nimish. When Yogendra comes, we'll start the doubt session, okay? Yeah, Deepika, it means a newly born. But I told you, I've given my own definition. A person whose age is greater than 0, less than 1 is an infant. Good. So will you people be able to solve this problem now? Good, good. Nidhi Sharma is saying, can you share the Google Drive? Guys, every day we share the same information. I don't know why you people don't write in your book and note it down. It's FOSS free 5 drive. Okay, it's a bit.ly link. I am trying to again share with everybody the link for the Google Drive where you have all the information for this training. Guys, I've again shared the drive for the bit.ly drive for the Google Drive. I would request everybody to keep a note of this in their diary. Keshav is saying, sir, BMI took all my time. No problem, Keshav. At least you learned something. No issues. Try the next code challenge, next assignment. Vijay Kumar is saying, I am trying. Good, Vijay Kumar, try. And if you require any help, you can take from Mohit and Sandeep Jain. We have already shared their WhatsApp number to you people. They will help you wherever you get stuck in while doing your assignments. Sandeep and Mohit, can you people write your WhatsApp number on the chat for everyone? Mohit and Sandeep. Yeah, Mohit and Sandeep, can you write your WhatsApp numbers on the chat so that everybody can note it down? Guys, these are the WhatsApp numbers, Sandeep Jain and Mohit's number. Kunal will take the solution for all the assignments the last day. If you want to have a look of the assignments, I have already uploaded on the solution directory. Go to the Google Drive, you'll find a solution there. The explanation will be done on the last day of the training for all the assignments for your 6 days. Is it clear, Kunal?
So now today's last assignment. Okay, guys, see on the screen. Concentrate again on your screen. The last third assignment for today is known as FizzBuzz. And the file what you need to create is known as fizzbuzz.py file. This problem is a very global international problem used by a lot of companies while hiring, and a very logical and a conceptual question. The problem statement says you need to iterate or write a program which generates numbers 1 to 50. Okay, so it has two parts, guys. The first part is you need to use the while loop to generate number from 1 to 50. And when you're generating, if the number is divisible by 3, you need to write fizz, F-I-Z-Z. And if a number is divisible by 5, you need to write buzz, B-U-Z-Z. And if any number is divisible both by 3 and 5, okay, you need to rewrite what? FizzBuzz. So guys, if you see the output, you have written output as 1, 2, and because 3 is divisible by 3, the output is fizz. Then comes 4, then comes 5. 5 is what? Buzz. 6 is what? Divisible by 3, it is written fizz. Like that, when the number 15 comes, the output will be FizzBuzz. Why? Because 15 is divisible by 3 and 5 both. And as a hint, guys, if you want to find that if any number is divisible, you can use the percentage symbol, and the percentage symbol is used to find what? The remainder whenever you're trying to do a division. This is the hint to solve this problem, and you need to use two concepts here. You need to use while also, and you need to use if also here. Is it clear, guys? Yuvendra say, if you are back, I'll request that if you can run the solution of all the 3 assignments, so it becomes easy for them to understand. So this is, I'm going to talk about the assignment 3, and that assignment 3 is basically the first assignment for today. So let me see where that file is, guys. So files, what is the name? Is a salary1.py, right? So this is it. Yes, it's salary.py, sir. So guys, this is the solution to first code challenge for today. That salary clearance, clean the messy salary wala part, right? So let's say if your salary is in this format, right? What it has the dollar in the beginning, then 3-digit, and then comma, and then 001, and when you run this, basically it seems that he has written, okay, so there is some solution is written behind. So request you don't scroll. Everybody can see the solution then in the video. so people are very smart. People are very smart, sir. People are they must be right. So so if I press this run button here to directly run this code, there you can see, guys, it gives me the output like this. It is giving it is printing twice, but the answer should be like this. If you provide the salary in this way, dollar, then some numbers, then comma, then some numbers, the output should be like that, right? So input is in form of a string with few additional characters, but you need to print it this way as an integer number, right? This is your first code challenge for today, and then the second one was, what is the file name? If else, sir. If else.py.
सीनियर सिटीजन वाला, राइट? Yeah. If सो else. इफ एल्स वाला जो आपका कोड है ये रहा, इफ एल्स डॉट पी वाई, तो इसको भी मैंने डबल क्लिक किया, इसको ओपन किया टैब में लेफ्ट साइड एडिटर विंडो में। इफ आई रन इट, नो मैंने इसको रन किया है। जब इसको रन करते हैं तो ये यूजर से कुछ इनपुट मांग रहा होगा। सो लेट्स रन इट। बोलता है एंटर द एज, तो मैंने बोल दिया कि एज इज 35, देन इट सेज अडल्ट, राइट? इफ आई रन इट अगेन and enter some other age, so let's say someone is 17 years old, then it says this child, right? So this is how it should work, guys. Then the last code challenge for today was FizzBuzz. If I run this FizzBuzz, it uses combination of looping as well as, if else kind of condition. So, and when we run it, it will print, the numbers with certain conditions, right? तो आपको बता दी गई है कि कब fizz print कराना है, कब buzz और कब FizzBuzz. So this way, the output should be like that. So guys, are these three assignments, clear to you, what you have to do and what should be the output? Is that clear to you guys? Kratika, Ashutosh, Pooja, Tanvi, a lot of people, Iskandar, Pankaj, Ishita. Okay. Aman Singh कह रहे हैं कि सर assignment 5 can't we use break and continue? Which is the assignment 5 you're talking about? Okay. I think Aman, let's try it first and then we can discuss more about it later on. First एक बार आप try कर लीजिए और फिर हम उसके बारे में और बताएंगे. Right? So हम लोगों ने कंटिन्यू और ब्रेक दोनों ही बता दिए हैं आपको, राइट? तो बट आप देखिए इसमें कैसे इसको यूज करना है, ठीक है? यस अमन, वी कैन डू दैट, राइट? गगनप्रीत वाधवा कह रहे हैं कि सर आई एम डन विद 2 असाइनमेंट्स ऑफ टुडे. थैंक यू गगन, गुड. Now guys, we are open for your questions. So if you have any questions, please do share with us in the chat window and we'll be happy to help you answer those questions. Right? So मालविका धाप कह रही है सर हाउ टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज. तो 2 तरीके हैं मालविका. अगर आप एडिटर विंडो में हैं, जैसा कि फिलहाल मैं इस विंडो में यहाँ पे हूँ और कर्सर को मैंने यहाँ पे लेके आ गया हूँ, राइट? So then कंट्रोल प्लस, ठीक है मालविका. और अगर आप कमांड लाइन मतलब जो कंसोल पे फॉन्ट कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो शिफ्ट कंट्रोल एंड प्लस और माइनस आप ले सकते हैं. सो एडिटर में सिर्फ कमांड एंड प्लस, और इधर अगर आप कंसोल पे हैं तो शिफ्ट भी साथ में यूज करना पड़ेगा. मालविका, इज दैट क्लियर टू यू? निमिश जोशी कह रहे हैं कि सर डज ऑर्डर ऑफ कंडीशन इज रिक्वायर्ड इन इफ एल्स. आई थिंक निमिश एक बार ट्राई कर लीजिए एंड ट्राई टू मैच द आउटपुट. व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट फ्रॉम यू, उसके हिसाब से आप चीजें देखें एक बार. अमन कह रहे हैं कि सर हाउ टू स्टोर कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग एंड यूज इट. अमन, मुझे थोड़ा सा सवाल तुम्हारा समझ में नहीं आया है. एक बार आप मुझे वापस से थोड़ा डिटेल बताएंगे व्हाट यू वांट टू डू. आशुतोष शर्मा है, वो कह रहे हैं सर इन लिस्ट डेटा टाइप कैन वी यूज एलिमेंट अदर देन स्ट्रिंग. यस, वी कैन यूज इट एंड वी विल डिस्कस मोर अराउंड लिस्ट टुमारो. आशुतोष, राइट? हम कल बात करेंगे उसके बारे में, राइट? तन्वी खांडल कह रही हैं कि सर व्हाट इज द प्रॉपर यूज ऑफ स्प्लिट. कई बार तन्वी आपको एक बड़ी स्ट्रिंग है, एक बड़ी स्ट्रिंग है, ठीक है, और उसमें आपको छोटे हिस्से पे कुछ काम करना है. सो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. मे बी आई कैन शो वन एग्जांपल. जैसे कि फॉर एग्जांपल तन्वी, मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है इस तरीके से. प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना जरा आप, ठीक है? और यहाँ पे मैंने लिख दिया है फर्स्ट जयपुर,
ठीक है। और मैं अब आपसे ये कहता हूं कि str1 में जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं उन सभी वर्ड्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। उन सभी वर्ड्स को क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। मतलब आउटपुट कैसा आना चाहिए, तो पहले तो फॉस्क का रिवर्स, तो फॉस्क का रिवर्स क्या होगा, के होगा, फिर एस आर ओ एंड देन एफ, फिर स्पेस आना चाहिए, और फिर जयपुर का रिवर्स होगा तो आर आना चाहिए, यू आना चाहिए, पी आना चाहिए, आई ए, ठीक है, एंड जे। सो दिस शुड बी द आउटपुट, राइट। सो इस केस में आप देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देंगे, और फिर स्प्लिट को करने के बाद लिस्ट में हर एक आइटम को रिवर्स करेंगे और फिर उनको वापस से ज्वाइन कर देंगे टू गेट बैक दिस स्ट्रिंग। इज दैट क्लियर टू यू तन्वी? नाउ रोहित चौधरी कह रहे हैं कि सर रिमूव और रिप्लेस मेथड फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, सो रिमूव मेथड कोई भी मेथड रिमूव के नाम से नहीं है रोहित स्ट्रिंग में, राइट। बट उसका क्या मतलब है मैं एक बार बता देता हूँ। रिप्लेस का क्या मतलब है, तो जैसे मैंने यहाँ से इसको फिलहाल हटाया है, और मैं ये कहता हूँ कि ये जो के है इसको कैपिटल से रिप्लेस करना है, तो कैसे करेंगे इस चीज को, str1 डॉट रिप्लेस मेथड। सो मैं यहाँ पे रिप्लेस मेथड लेके आ गया, राइट। रिप्लेस मेथड लाने के बाद मैं यहाँ पे दो चीजें उसको दूंगा कि किसको रिप्लेस करना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि भैया के को रिप्लेस करना है, और बोला किससे रिप्लेस करना है कि भैया कैपिटल के से करना है। सो दिस इज द वे आई कैन डू दैट, राइट। ये हो गया। Oh, so I need to first get this str1. So now here is str1 guys, and then I just replace it. So there you see it got replaced with the capital. जरूरी नहीं है हमेशा सिंगल कैरेक्टर ही रिप्लेस में देना है, आप चाहें तो स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं उसको बोलता हूँ कि यार जहाँ पे भी एस के आ रहा हो या ए आई आ रहा हो, लेट्स से जहाँ पे भी ए आई आ रहा हो वहाँ पे डॉलर डॉलर से रिप्लेस कर दो इसको। तो डॉलर से रिप्लेस कर दो, लेट्स से सिंगल डॉलर से ही करना है। तो दिया तो ए आई है, लेकिन अगर जहाँ जहाँ पे भी ए आई है उसको किससे रिप्लेस करना बताया गया है, डॉलर से। सो यू कैन, सो दिस वे। सो इज दैट क्लियर रोहित? अब राहुल है अहमदाबाद से, वो ये कह रहे हैं कि सर फोर लूप वाला एक बार फिर से समझा दो प्लीज। ओके, एक बार फिर से समझ लीजिए राहुल। हमारे पास यहाँ पे देखिए लिस्ट वन है, और इसमें मैंने यहाँ पे कुछ नाम रखे हैं, राइट। तो जैसे कि नाम की, चलो मैं यहाँ पे कुछ सीधी इंटीजर वैल्यूज ही देता हूँ, 1 2 3 4, राइट। और अब मैं इन वैल्यूज को एक एक करके प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं एक फॉर लूप का यूज करूंगा। तो मैं कैसे लिखूंगा, फॉर ईच आइटम इन लिस्ट वन, राइट, प्रिंट आइटम, प्रिंट आइटम। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ये एक फॉर ईच लूप चल रहा है। जब पहली बार लूप चलेगा तो आइटम में क्या वैल्यू होगी, 1। दोबारा लूप चलेगा तो आइटम में क्या होगा, 2। फिर दोबारा लूप चलेगा तो आइटम में क्या होगा, 3। फिर दोबारा चलेगा लूप तो आइटम में 4। तो एक एक करके वैल्यूज डायरेक्टली आइटम में आती जा रही हैं। ये आइटम मैंने अपनी तरफ से इसका नाम दिया, इसको प्लेस होल्डर कहते हैं, इटरेटर कहते हैं। आप इसकी जगह कुछ भी नाम ले सकते हैं। इफ यू आर ओके, अगर आप बोलते हो कि सब आइटम नहीं, मुझे तो नंबर लिखना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, नंबर, और फिर प्रिंट भी क्या कराना पड़ेगा, नंबर प्रिंट कराना पड़ेगा। सो दिस वे यू कैन डू दैट। सो इस तरीके से हम फोर को यूज कर रहे हैं, बोलते इसको फोर ईच है, तो आई विल से फोर ईच नंबर इन लिस्ट वन प्रिंट नंबर। सो दिस इज व्हाट वी डू। अमन सिंह कह रहे हैं सर हाउ टू टेक इनपुट एज कैरेक्टर्स। तो अमन, इनपुट मेथड जब हम लोग यूज करते हैं तो वो तो सब कुछ एसटीआर ही होता है, राइट। और कैरेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंगल लेटर भी एसटीआर ही है पाइथन, ठीक है। मालविका कह रही है सर इज देयर एनी शॉर्टकट की टू सेलेक्ट मल्टीपल लाइंस। नो मालविका, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। दिनेश जोशी कह रहे हैं सर हियर इन दिस प्रोग्राम ऑर्डर इज नॉट करेक्ट, समवन सेड इफ वी हैव
correct order, then this code will work properly. ओके, सो एक बार निमिष जो है वो अपना कोड जो है ना एक बार संदीप को दिखा दीजिए, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अमन कह रहे हैं कि सर एक बार म्यूटेबल और इम्यूटेबल बता दीजिए। सो यू नो जैसे आपने कुछ हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा अमन, जैसा होता है ना कि किसी किसी क्रीचर के या किसी जानवर के उसके डीएनए का म्यूटेशन हो गया, डीएनए का म्यूटेशन होने से उसका उसका जो बॉडी शेप है या तो वो चेंज हो गया, उसका साइज बढ़ गया, राइट। इसका मतलब उसके डीएनए में म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन का मतलब है वो चेंज हो गया, राइट। और इम्यूटेशन मतलब जो चेंज नहीं हो सकता है। सो अगर जो चीज चेंज हो गई है तो वो हम कहेंगे म्यूटेबल, और जो चीज चेंज नहीं हुई है उसको हम लोग कहेंगे immutable, right? So I think now you can understand that, Aman. केशव कंसल कह रहे हैं कि सर किसी इंटीजर को नन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, राइट, जिससे वो रिमूव हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा केशव, मुझे एक बार किसी प्रॉब्लम का मतलब आप थोड़ा समझा देना, फिर आपको आपको पता चलेगा कि कैसे है। और एक सवाल आया है देदीप से, सो वो कह रहे हैं कि सर एक बार वाइल को बता दीजिए। तो मैं एक बार देखिए यहाँ पे, लेट्स से मैंने एक वेरिएबल लिया है नंबर इज इक्वल टू 0, राइट। और अब मैंने एक वाइल लूप लिखा, वाइल, ठीक है, उसके बाद कंडीशन लिखनी होती है। मुझे लूप कब तक चलाना है? मुझे ये लूप जब तक चलाना है जब तक मेरा नंबर 10 से छोटा है। फिलहाल नंबर क्या है? 0 है। और मैंने फिर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिंट नंबर कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे नंबर प्रिंट कर, तो देखिएगा यहाँ पे दे दी नंबर 0 है, वाइल लिख दिया है, कंडीशन क्या है, नंबर इज लेस देन 10, तो ऑब्वियसली नंबर फिलहाल 0 है, तो 0 इज लेस देन 10, तो कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो अब देखते हैं जरा यहाँ पे, इसको एक बार रन कर लेते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पे ये 000 प्रिंट करता ही जा रहा है, प्रिंट करता ही जा रहा है, राइट। क्यों प्रिंट करता जाएगा? क्योंकि हमें सिर्फ नंबर प्रिंट करा रहे हैं, और नंबर हमेशा ही 0 है, और 0 अगर नंबर 0 हमेशा 0 है तो हमेशा लेस देन 10 है। अगर लेस देन हमेशा 10 है तो ये लूप चलता ही रहेगा, कभी भी रुकेगा ही नहीं। तो मैं यहाँ पर फिलहाल इसको ब्रेक कर देता हूँ प्रेसिंग द बटन। तो मुझे अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक और काम कर सकते हैं प्रिंट के बाद, राइट। हम एक काम कर लेते हैं, हम नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1 कर देते हैं, सो दैट इन एवरी इटरेशन, हर इटरेशन के बाद क्या हो जाए, नंबर 1 से बढ़ जाए। तो पहली बार नंबर 0 होगा, वो प्रिंट होगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 1 इज स्टिल लेस देन 10, तो कंडीशन ट्रू है, फिर 1 प्रिंट होगा, फिर वो 2 हो जाएगा। सो दिस वे यू कैन सी कि नंबर 0 से स्टार्ट हुआ है, राइट, प्रिंट होना, फिर वो 1 हुआ है, फिर 2, जैसे ही नंबर 9 प्रिंट किया, तो जैसे ही यहाँ पे 9 प्रिंट हुआ है इस स्टेटमेंट की वजह से, यहाँ पहुंचते ही 9 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 हो गया, तो 10 हो गया। नंबर जैसे ही 10 हुआ तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप खत्म हो गया। सो दिस इज द वे यू कैन सी हाउ द while is working. Is that clear to you, Dedeep? Shraddha Harnath कह रही है कि सिर्फ while statement you use if condition you put colon outside the bracket, why can't put inside? No, वो एक syntax है श्रद्धा, वो बाहर ही रखना पड़ेगा आपको, राइट। That is always outside this condition, वो condition का part नहीं है, condition इससे पहले और फिर बाद में colon, ठीक है। नमन कह रहे हैं कि सर अगर हमें इंडेक्स प्रिंट कराना हो लूप में, उसके लिए एक अलग लॉजिक है, तो जब हम कल लिस्ट की थोड़ी बात करेंगे उस टाइम पे विल डिस्कस दैट, राइट। पुष्पिंदर कौर है, वो कह रहे हैं हाउ टू प्रिंट स्ट्रिंग एंड वैल्यू ऑफ सम वेरिएबल टुगेदर। हाउ टू प्रिंट स्ट्रिंग एंड वैल्यू, एक बार पुष्पिंदर कुछ थोड़ा और डिटेल बताएंगे आप, किस तरीके से क्या क्या करना चाह रहे हैं। महक कह रही है कि सर इफ वी नॉट वांट प्रिंट इन नेक्स्ट लाइन, तो वो कह रही है, महक कह रही है कि सर अगर आपको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट नहीं करना है, जैसे इस केस में यहाँ पे हमारे पास लिस्ट 1 में 1 2 3 4 हैं, और जब हम ये लूप चला रहे हैं तो वो एक एक करके प्रिंट हो रहे हैं, देखेंगे। और जैसे यहाँ पे
उनका कहना है कि just a minute. उनका कहना है कि मुझे नेक्स्ट लाइन में नहीं चाहिए, तो यहाँ पे उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू कॉमा, एक कॉमा का यहाँ पे यूज करिए और फिर यहाँ पे एंड करके एक कीवर्ड है, राइट, और यहाँ पे प्लस दीजिए एक बार। तो आई थिंक दैट शुड सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। लेट मी सी इफ इट इज वर्किंग। Now you can see we see all the values in single line, right? Heck. मालविका कह रहे हैं कि सर ये कंसोल कैसे क्लियर कर सकते हैं, तो उसके लिए क्लियर कमांड है मालविका, वो आप दीजिए, ठीक है, तो देखिए क्लियर होगा पूरा। रोहित कह रहे हैं कि सर व्हाट इफ आई वांट टू रिमूव द के फ्रॉम फर्स्ट, तो उस केस में सिंपली आपको रिप्लेस में क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे कैपिटल के दे रहा हूँ तो इसको हटा करके यहाँ पे ब्लैंक कर दीजिए रोहित, राइट। तो देखिए रिप्लेस किससे करना है, ब्लैंक से। तो इस केस में वी शुड बी एबल टू डू दैट। नाउ यू कैन सी k got removed, right? बैंक आचार्य सर कह रहे हैं कि सर व्हाट इफ यू डोंट नो द लिस्ट कंटेंट बट यू वांट टू रन फॉर लूप अप टू सम पर्टिकुलर इंडेक्स, विल सी, लिस्ट अभी आने दो मैक एंड देन विल हैंडल दैट पार्ट एज वेल, राइट। सत्यनारायण सैनी कह रहे हैं कि सर प्री डिफाइंड फंक्शन एलियन को बिना यूज करे लेंथ कैसे पता करें। तो सत्यनारायण का लाइक एक बार बेसिक तुम्हारे पाइथन के क्लियर हैं तो तुम अबाउट स्टैक ओवरफ्लो को एक बार यूज करके देखो कि वहाँ पे कैसे बताया गया है, राइट। थोड़ा सा करो और फिर एलियन को हम बिना यूज किए हुए भी अपने स्ट्रिंग का लेंथ अपने चीज अपने तरीके से पता कर सकते हैं, वी कैन राइट अवर ओन कोड, राइट। नमन कह रहे हैं कि सर अगर हमें इंडेक्स प्रिंट कराना हो लूप में, नमन ये बात कल आएगी, एक बार कल हम जब देखेंगे इस चीज को, राइट। विशाल वकील कह रहे हैं कि सर फॉर लूप वी यूज नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस वन, देन विल इट इंक्रीज टू टाइम्स एज इट आल्सो इंक्रीजेस इट्स ओन। ओके, सो यहाँ पे तुम्हारा कहने का जो मतलब है विशाल, तुम कुछ इस तरीके से कहना चाह रहे हो कि फॉर एग्जांपल मैं सर यहाँ पे ये तुमने नंबर प्रिंट किया है और तुम शायद ये कह रहे हो कि सर नंबर को मैं खुद से ही नंबर प्लस वन कर दूं तो क्या होगा, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट। सो दिस इज you are saying like that. So now we have a list and in the for loop we are trying to bring that. So let's see guys what happens here. See this. There you can see this is not working here. Anyway, let me check if that is the case. I implemented by 10 actually, just for a more clarity what happens here. So now you can see it doesn't affect, right, Vishal? प्रिंस सोनी कह रहे हैं सर अगर मल्टीपल इनपुट लिए हों और अगर स्टेटमेंट ब्रेक कराना हो तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इसके अंदर कुछ कह रही है सर इफ वी ऑलरेडी हैव सम वेरिएबल s1 से एंड वी नीड टू प्रिंट अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन s1 as in C, S1 ही अपने आप में वैल्यू होल्ड करता, तो जब तुम S1 को प्रिंट कराओगे तो S1 में जो वैल्यू है वही प्रिंट होगी इसके अंदर। मुझे तुम ऐसा करना, छोटा सा कोड लिख के देना और तुम क्या करना चाहते हो उसके हिसाब से बता, ठीक है। हर्षवर्धन सिसोदिया कह रहे हैं सर हाउ टू इंस्टॉल पांडास, तो वो मैंने कल बताया था हर्षवर्धन, एक्सक्लेमेशन मार्क राइट पिप इंस्टॉल एंड पांडास, तो आप कमांड लाइन पे जाकर के ये काम कर सकते हैं। वैसे पांडास स्पाइडर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता है हर्ष, राइट। यस, फोर में वो खुद मैनेज होता है, वाइल में हमें मैनेज करना पड़ेगा विशाल, ठीक है। अमन मुझे तुम्हारा सवाल फिर से समझ नहीं आया है, एक बार मुझे वापस बताएंगे।
ओके हर्षवर्धन, कोई बात नहीं, पाइचाम में मतलब पिप के थ्रू इंस्टॉल हो जाता है। आप एक बार स्टैक ओवरफ्लो कर लोगे तो पता चल जाएगा, राइट। आशुतोष, आई वुड रिकमेंड दैट अगर तुम्हें सीरियस कोडिंग कुछ करनी है पाइथन में तो आइडल पे ना जाइए, कुछ सफोस्टिकेटेड टूल यूज कीजिए, या तो जुपिटर यूज करो या स्पाइडर यूज करो, वो मत करिए आप, है ना। ओके इश्विंदर, ओके ये अच्छा, ओके इश्विंदर, इसको ऐसे समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से एज एक वेरिएबल लिया जिसमें लेट्स से डाल दिया हमने 30, राइट। और अब मुझे ये प्रिंट कराना है तो ऐसे लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने, ये स्टेटमेंट लिख दिया एज इज, ठीक है, और यहाँ पे कॉलन लिख, मान लीजिए कॉलन लगाते हैं, स्पेस छोड़ दिया, फिर यहाँ पे कॉमा दिया, तो ये स्ट्रिंग तो खत्म हो गई, कॉमा के बाद मैंने उस वेरिएबल को सीधा लिख दिया। So this way you can print and then we'll see the output as age is 30, right? Isminder, this is what you are looking for. This is what you are exactly. Okay, fine. ठीक है, so इस तरीके से यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। प्रिंस एक बार संदीप या मोहित से कांटेक्ट कर लो, ठीक है। So guys, any other questions? इसके अंदर कौन से कॉलेज से हैं बताएंगे एक बार आप। आशुतोष, आप किस कॉलेज से हैं? अमन, हर्षवर्धन, कौन से कॉलेज है आपका, मुझे बताएं एक बार। अमन कह रहे हैं कि सर आई एम फ्रॉम यूपीएस हैदराबाद। हर्षवर्धन सिसोदिया कह रहे हैं कि सर मैं सीकर से हूँ राजस्थान। इसमें कह रही है पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओह वेरी गुड। आशुतोष फ्रॉम ठीक। सो अमन, मुझे तुम एक काम करना, छोटा सा कोड लिखो जो तुम करना चाहते हो, फिर उसमें करेक्शन नहीं करना, ठीक है। फर्स्ट यू राइट अ सिंपल पीस ऑफ कोड एंड देन दिस। मयंक आचार्य हैं, वो कह रहे हैं कि सर आई एम फ्रॉम निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद एंड योर एक्सप्लेनेशन इज ऑसम। थैंक यू मयंक। रोहित, इफ यू वांट वी कैन वी विल हैव दैट, डोंट वरी, राइट। एक बार जो अभी फिलहाल असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं उन्हीं पे ढंग से फोकस करके प्रैक्टिस कीजिए, राइट, एंड देन आई लेट यू नो कहाँ पे आप और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, वेयर यू कैन हैव मोर प्रैक्टिस अराउंड दैट। गाइज एक एक अनाउंसमेंट है आप सभी लोगों को, जो अभी लोग मुझे सुन रहे हैं फिलहाल, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, फॉस्ट का अप्रोच अच्छा लग रहा है, तो एक बार गूगल रिव्यू अगर आप दे सकते हैं तो प्लीज डू अ गूगल रिव्यू फॉर अस, राइट, राइट योर एक्सपीरियंस। आप अपना एक्सपीरियंस लिखें, वी वर बोस्ट इनटू दैट। आपका जो भी एक्सपीरियंस लग रहा हो उसको आप जरूर लिखिए। इस लिंक पे क्लिक करते ही डायरेक्टली आप गूगल रिव्यू पे चले जाओगे एंड you would be able to write a review for us. हाँ अमन, इससे तो बेसिकली यू कैन ऐड यहाँ पे जब हम ये करेंगे तो फॉर एग्जांपल तुम जो कह रहे हो ये ऐसा है कि नेम इज इक्वल टू, श्रेयांश कह रहे हैं कि सर आई एम ओपनिंग द लिंक, इट इज ओपनिंग गूगल मैप्स। ओ सो एक बार वहाँ पे श्रेयांश जाके देख लो कि वहाँ पे कोई रिव्यू टैब है क्या, लुक इनटू दैट, ठीक है। सो नेम लिखा हुआ है, नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे तुमने इनपुट मेथड लिखा अमन, और तुम कह रहे हो कि एंटर enter your name, right? So there you see like enter your name. This is how you say, right? So ये जो चीज़ तुमने यहाँ पे लिखी है, इससे तो obviously जब हम इसको execute करेंगे अमन, right? और यहाँ पे एंटर आ गया तो लेट्स मैंने लिख दिया अपना नाम योगेंद्र। आई थिंक अब तुम शायद कुछ एक एक कैरेक्टर को पढ़ना चाहते हो तो वो तुम कर सकते हो, कि फॉर एग्जांपल लूप से भी कर सकते हो कि for each letter in name, ठीक है।
for each letter in name, and then I say print letter. Okay. So this way I can get one character at a time and get it printed. So this is how it gets me. So this is what you were looking at. This is what you were looking. Oh, okay. So that you can do using a loop. वो आप loop से कर सकते हैं. So guys, I think we are done for today, right? श्रेयांश, तुमने पाइथन कहाँ से किया? You are into 7th standard right now. And how come you got to know about coding and programming? किसने बताया तुम्हें? Who guided you? Your parents? Okay, Shreyansh कह रही है, my sister told me, but your sister itself is in 9th class. How come she came to know? इशिता, कहाँ पे? ओके वर्षा, थैंक यू. वर्षा कह रही है कि सर मैंने रिव्यू दे दिया है. थैंक यू वर्षा. ओके, ठीक है श्रेयांश, थैंक यू. ओके ओके. Okay, so Ishita saying sir through Atal Tinkering Labs (ATL) and then she came to know about Python. Okay, good Ishita. Yes, Aman, you are right. आपको अगर वैल्यूज मतलब एड्रेस ही रीड करना है तो सिंपल इनपुट लेना पड़ेगा. अगर आप उसको एज या कुछ ऐसी चीज पढ़नी है तो फिर आप उसको फ्लोट में इंटरनेट टाइप कास्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो डायरेक्टली रीड कर देगा. आशुतोष कह रहे हैं कि सर रिव्यू मिशन कंप्लीटेड सर. थैंक यू आशुतोष. जो लोग रिव्यू देना चाहते हैं प्लीज डू दैट. श्रेयांश कह रहे हैं कि सर नाउ वी लर्न फ्रॉम YouTube and other sites. That's good. रोहित चौधरी कह रहे हैं कि सर यू आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम विच कॉलेज? So Rohit, I have done BTech in computer science, right? And उसके बाद इंडस्ट्री में मैंने काम किया एज एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपर. फिर मैंने जापान में काम किया, चाइना में काम किया. मैंने चाइना के वैसे नाम लेने से डर लगता है आजकल. सो वहाँ काम किया, बैंगलोर में, हैदराबाद में, कॉलकॉम में, lot of companies as a manager as well, as a module lead as well, lot of positions there as well. So अभी फर्स्ट को मैं और सिल्वेस्टर सर 5 साल से इस स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं. इसका फोकस है कि जो बॉटम ऑफ पिरामिड लोग हैं, जो लोग 2 tier सिटीज़ में, 3 tier सिटीज़ में हैं, जो लोग क्वालिटी एजुकेशन जिनको चाहिए उसको किस तरीके से हम कर सकते हैं, प्लस अलॉन्ग विद द स्किल डेवलपमेंट, अलॉन्ग विद द कि एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो, कि जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनको अच्छा जॉब कैसे मिले. तो अमन कह रहे हैं कि सर विल यू टीच जावा और सम अदर कोर्सेज? जावा इज कमिंग सून अमन, राइट? अभी अगले 2 महीने में तो नहीं है, बट इट इज कमिंग सून. So probably May and June. So I think it can be there in July. So far अभी अगले 2 महीने का कैलेंडर इज ऑलरेडी फिक्स विद अस. हम लोग ऑलरेडी 2 महीने का कैलेंडर बना चुके हैं. आप में से कुछ लोग अगर मशीन लर्निंग का ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स, तो वो आ रहा है अभी. मशीन लर्निंग का कोर्स इज कमिंग अप. That would be a 5 days program on machine learning. So in case Shreyansh you want to join, you can join, and other people also, right? C is also coming guys. Prince C भी आने वाला है, ठीक है. वह कोले सर कह रहे हैं कि सर कैन यू शेयर द कैलेंडर ऑफ योर कोर्सेज? विल डू दैट. सुरेंद्र will share details with you, sir. अमन देयर इट इज. एक बार सुरेंद्र से कांटेक्ट कर लेना फिर उसके लिए डिटेल्स के लिए, ठीक है. So I think guys now we can close the session for today. ठीक है.
प्रिंस भैया बार बार ये तो रिपीट सीजन है तुम्हारे लिए, फिर क्यों ज्वाइन करते हो प्रिंस? ये तो अटेंड कर चुके हो ना तुम। केशव, इसमें डेटा एनालिटिक्स नहीं है, डेटा एनालिटिक्स का एक अलग से कोर्स होता है 5 दिन का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। Thank you, Prince. So, okay, guys, I think we can close now. Thank you. See you tomorrow at 5 p.m.